So as you already, it's also known as intra ID. We discussed about users yesterday. We discussed about the groups. We discussed about permissions like RBAC. We discussed about IAM, and we discussed some different kind of permissions over there. So in the users, we have discussed two methods for the creation: the manual user creation and the invite procedure. Then we also discussed about bulk user creation and deletion. So if we want to create bulk user, if we want to invite bulk user, or if we want to delete multiple users, then how we can do that. Same we have seen for the groups as well. We have discussed how we can create the groups, and the bulk option was also there. We discussed about the permissions, the RBAC policies, IAM policies, how we can assign the permission. That part we have seen. We have discussed about the global administrator permission as well. We discussed about user access control, the contributor, reader, owner. So these things we have discussed. Now let's proceed further and let's understand more option in the Azure AD. So this is my portal, and here I will just go to the intra ID platform. So this part has been discussed. This one is also done. Now today I will start with the multi-factor authentication. So we will start with the MFA. Then we have to discuss about the administrative unit. We have to discuss about PIM and the licenses. So we have to talk about these options. So let's discuss. And there is one more: security defaults. Okay. So I will start with the MFA. So MFA stands for multi-factor authentication. The full form is multi-factor authentication. So if in case you are the person who are managing the AD in the company, then the MFA setup will be your responsibility as well. अगर AD आप ही manage कर रहे हो तब तो ये काम भी आप करोगे. Otherwise, all these tasks that we discussed so far, this will not be handled by you. There will be separate AD team for all these tasks. But if you are the person who are eligible for all such things, then you will be doing it. So what is MFA? MFA stands for multi-factor authentication. What happens in the MFA? So you might have seen that whenever the user logs in, जब कभी भी login का process होता है, let's suppose I want to log in into the Azure portal. So what is the process? We enter our user ID, then we enter our password, then we are able to log in. So this process generally is known as single factor authentication. इसको कहते हैं single factor authentication. So when we enter the user ID and the password to log in into the Azure portal, and if we are able to log in this way, then we can call it single factor authentication, SFA. And this kind of method is generally not very much secure. ये कोई बहुत ज़्यादा secure option नहीं होता है, because what happens in the cyber security, there is one attack which is called brute force, and there is one more attack which is called dictionary based attack. तो ये दो attack जो होते हैं, if I talk about the dictionary based attack, in the dictionary based attack what happens, if you have given any kind of password which resembles to the dictionary words, अगर आपने कोई ऐसा पासवर्ड सेट किया जो डिक्शनरी में किसी ना किसी वर्ड से मैच कर गया, so hacker would be able to scan them using the dictionary based attack tools, and if your password is matching according to the dictionary words, hacker will be able to trace that password and they can log in into your Azure portal and they can do any disaster thing. So this can happen. Another one is brute force. So in the brute force attack, what they can do, they can try to guess your passwords using some keyloggers, and they will get the password in their email IDs, then they will be able to log in. So this kind of authentication method to log in with the portal is generally not secure, because password can be guessed by anyone, especially for the personal people. Generally, what kind of password we keep our name as a password, our date of birth as a password, mobile number, then our name at the rate 12345. So these kind of passwords are easily guessable. They are the weak passwords, and it is easily prone to the hacking. So password hacking is very common. It is very easy even. When I was working with my last to last organization with some entity data project, so there used to be some client. There were some mid-sized companies in the Europe market. Like for example, in the England, there used to be two or three companies.
and in Czech, Czech is one of the countries. So in the Czech Republic, there was one or two company that got hacked by the hacker. So I was supporting the Azure platform there. I was the senior Azure cloud engineer that time, and it got hacked. And what the hacker did, hacker simply logged in into the portal. Hacker portal पे गया, login मारा बड़े मजे से. Even the password was also very high. It was highly case sensitive password. क्योंकि जो एडमिन है वो तो ऐसा छोटा मोटा पासवर्ड थोड़ी रखता है. सो इट वाज हाईली केस सेंसिटिव पासवर्ड एंड इट वाज जनरेटेड थ्रू द टूल बट स्टिल इट गॉट हैक्ड. And what the hacker did, so there is one option here, machine learning, this one, Azure ARC machines and Azure machine learning. So the hacker went to this Azure machine learning and he had already created one of the PowerShell script. So what he did, he ran that PowerShell script over here, and around 200 or 300 resources got created in the machine learning platform. And it was like Friday night when the hacking happened on the portals. Friday night को hacking हुई. सैटरडे संडे नो वन वाज एक्टिवली मॉनिटरिंग द थिंग्स, क्योंकि छोटी कंपनी थी तो मतलब मिड साइज की थी, उनके पास ज़्यादा टीम भी नहीं थी उस तरीके से. तो वी वर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू मैनेज देयर सपोर्ट. मतलब L1 L2 तो उनकी खुद की कंपनी मैनेज कर रही थी, बट फ्रॉम L3 टू द नेक्स्ट लेवल वी वर सपोर्टिंग देयर कंपनी. So उस टाइम में सर्विस बेस्ड, लाइक इट वाज लाइक अ सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट. So what happened? Around 230 or 300 resources got created using the script. And within these 3 days, what happened? There was a huge bill. It was in euros. Like if you convert them in the Indian currency, so it would be around 8 to 9 crore rupees. That kind of bill was there. So company got targeted. उन्होंने पासवर्ड तक चेंज कर दिया एज्योर पोर्टल का, बिकॉज दे वर एबल टू लॉग इन, सो दे चेंज द पासवर्ड ऑल्सो. नाउ जो एडमिन था, जो ग्लोबल एडमिन था, दैट पर्सन ऑल्सो डिड नॉट हैव द एक्सेस ऑन द पोर्टल, क्योंकि उसी का पासवर्ड चेंज कर दिया उसने. Now what happened, the case we got to know about this because alerts वगैरह setup होते हैं. So on Monday morning we got to know about this, that such kind of incident has happened. फिर उन्होंने भी रिपोर्ट कर दिया था हमें कुछ टाइम के बाद. So we were also not in a position to control. So what we did, we had to raise the complaint to the Microsoft. Microsoft को टिकट रेज हुई from the premier plan. तो कंपनी के पास प्रीमियम plan options होते हैं. So we raised the ticket to the Microsoft. Microsoft engineer has disabled all the access, revoked everything, deleted every new resource. उसने सब कुछ delete कर दिया. And जो bill बना, the bill has to be paid by the company. अब कंपनी का पेमेंट करना बच सकता है, but if they are not following up the protocols of Microsoft, then they will have to pay. So हुआ क्या? The engineer from the Microsoft compliance team, that person detected that the company is not using any form of MFA or conditional access. मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में साफ साफ लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, इफ यू आर यूजिंग द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कंडीशनल एक्सेस, देन वी आर गोइंग टू टेक द गारंटी. इफ समथिंग हैपन्स, पहली बात तो ये है कि 99.95% चांसेस है दैट हैकर विल नॉट बी एबल टू हैक यू इफ दिस ऑप्शन इज enabled. हैक नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा SLA है. स्टिल 0.05% if the hacking happens by chance, Microsoft will be responsible for it. They will not charge you a single penny. They will be responsible for your data loss as well. So they take the guarantee. But if you are not following up their standards, their compliances, आपने MFA लगा ही नहीं रखा है, then Microsoft will not leave you. जो बैलेंस बना है वो देना पड़ेगा उस केस में. Then that can be settled in the court. So in the case of these 5 companies, 3 companies did not have enabled the MFA or conditional access, so they have to pay the fines. जो भी बिल बना था उसमें कंसेशन दे दिया था थोड़ा, they got the discount, but they have to pay. But जो 2 companies बच गई थी, their MFA was enabled, but their enforcement was not done. एक enforcement करके ऑप्शन होता है, so it was not done. तो माइक्रोसॉफ्ट ने फिर उनसे पैसे नहीं लिए, that got relieved. तो उनके जो भी रिकवरी थी that got zero. तो होता है, in the cyber world anything can happen. Cloud can also be hacked. Cloud भी हैक हो जाते हैं. अभी बीच में भी हुआ था ना, वो कुछ अटैक हुआ था विंडोज सर्वर प्लेटफॉर्म पे अराउंड, आई थिंक इस बात को 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है. तो मैं वायरस का नाम भूल गया, कुछ हुआ था बीच में. सो इट हैपन्स. Anything is not secure in the IT world.
एंड वी हैव टू मेंटेन द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी रहेगी ही रहेगी हमेशा, हर जगह सिक्योरिटी। एआई के आने से बहुत ज़्यादा लूप होल आ गए हैं अब डिजिटलाइजेशन में, सो एवरीथिंग इज वीक नाउ इट इज, एनीवन कैन डू एनीथिंग विद द एआई। तो यस, हैकिंग होती है एंड एमएफए इज वन ऑफ द ऑप्शन टू प्रिवेंट द लॉस। और जनरली जो हैकर्स होते हैं वो कंपनी के अकाउंट्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि वहां से उनको रेपुटेशन और पैसा कमाना होता है। बट yes, for every one of you, the multi-factor authentication must be enabled in your account. मैंने पहले दिन भी बताया था, and now I will be discussing this one in detail. So multi-factor authentication must be enabled in everyone's account. You should not go with the normal login. It means user ID और password डाल के login करना, it's not very much secure. And last year से Microsoft ने भी ये जबरदस्ती force कर दिया है, from October 2024. Microsoft has enforced, Microsoft has made it compulsory that you will have to use the MFA. इसी वजह से आपने जितने भी अकाउंट बनाए हैं आपका कोर्स स्टार्ट होने के बाद फ्रॉम जैन, सो जैन से आप लोगों ने जो अकाउंट बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा व्हेन यू लॉग इन विद द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, योर ओटीपी गोज टू द मेल आईडी, और वो मेल आईडी से आप ओटीपी डाल के देन यू आर एबल टू लॉग इन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द एमएफए हैज बीन इनेबल्ड ऑन द रूट अकाउंट्स बाय द माइक्रोसॉफ्ट। पहले नहीं था, पहले तुमको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना दैट वाज योर चॉइस, बट because of the increasing cyber attacks, the Microsoft has made it compulsory. So nowadays it is compulsory, it has to be there, and there is no charge for the MFA. Microsoft is not charging any single penny for multi-factor authentication. It is free of cost. आपके जितने अकाउंट है सब में लगाओ, they will not charge you any single penny. So what is multi-factor authentication? In the multi-factor authentication, when you will enter your username and password to log in into the Azure portal, after that there will be one more layer of authentication. एक और authentication की layer वहां पे काम करेगी, and in that layer what happens, the first option will be email. The mail will be sent, the OTP will be sent out to your email ID. Then you need to check that OTP and you have to log in with the Azure portal. That is called multi-factor authentication. Means ये single factor, एक से ज्यादा authentication है तो multi-factor. If you have the licensed version of Azure AD, then you can enable the SMS option as well. The code can be, the OTP can be routed to the mobile phones on your mobile number after entering the user ID and password. You have to enter that code into the Azure portal, then you will be able to log in. Another option is Microsoft Authenticator. This one is available with the free versions. जितने भी फ्री वाले Azure AD है उनके साथ भी है, पेड वालों के साथ भी है. So it is one of the app, if you remember during the storage account we have discussed about this application Microsoft Authenticator. So you can download this application from the Play Store in the mobile. It is free of cost by the Microsoft, and you can register your accounts with the Microsoft Authenticator IDs. And whenever you will log in, the notification will go to your mobile phone. You have to approve from the mobile, then only the login will happen. So these kind of secure practices are there. Authenticator is available in every platform, but email and SMS is available with the licensed platform, license Azure AD like P1, P2, P3 licenses. जो आपका root account होता है by default, like when you log in with your root ID, the global administrator in the Azure portal, that account is linked with your email. So whenever you log in, your OTP will go to the email ID. You have to enter that OTP and then you can sign in. Just like me. In your case, you might have noticed that whenever I log in with the Azure portal, I enter my user ID password. After that, I enter the OTP from my email. Then I am able to log in. So that is called multi-factor authentication and it is free of cost. These two facilities are there with the premium licenses. This one is there with premium plus free as well. So you have to enable it, and you can also enable it in your personal account as well, just to be safe. So अपने अपने account पे भी आप लोग enable कर लो. There is no charges for this. How to enable this? You can simply go to the Microsoft Intra ID. Then you need to go to the users. Whatever number of users you have, it doesn't matter. You can simply click on your user account and you have to click on per user MFA. So let me show you how does it work. In my case, if you will just select my user ID and if you click on per user MFA, so you will see it is enabled. See, enforced means it is enabled. So मेरे इस account पे enable है. Let me create one more user account and let me show you what is the process. So if you go to the new user, create one more user account and I will give you one. Display name will also be U1. Password is this PUJA करके कुछ password बनाया है इसने.
doesn't matter. So one more user account got created, U1. Now I want to enable the multi-factor authentication with this user. इसका MFA लगाना है. So how will I do it? Just select the user account and click on per user MFA. Just click on this. Whatever number of users you have, you will be able to see them. Even directly also, if you will not select any user, अगर आप select नहीं भी करोगे, still you can open this console. So you can directly click on per user MFA, and whatever users you have, you will be able to see them. Right now you can see it is disabled, मतलब इस account पे नहीं लगा हुआ है. So if you want to enable it, just select the user, click on enable MFA, then click on enable. Now there is one link also to register. How will you log in? So when you click on this link, it will take you to another portal. ये आपको एक अलग पोर्टल पे ले जाएगा, and you have to log in with your user ID and password, and from there you can enter your mobile number. आप अपना मोबाइल नंबर SMS वगैरह यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो. If you simply click on enable, अगर आप enable पे क्लिक करते हो, and if you refresh, so here it is showing you the enabled option, but enable does not mean that MFA has been enforced. Enable होने का मतलब है MFA on हो गया है, but लगा नहीं है अभी. It is not set. So in order to set the MFA, the status should be converted to the enforced. So you again have to select the user account and you have to click on enforce MFA settings. So enforce करके then enforce. And now it has been enabled. So when the user will log in into the portal, तो उसको register करना पड़ेगा आपकी date में with the multi-factor authentication. So first time the user will have to enable it. Let me just refresh. लग गया है कि नहीं लगा था उस time? Let me see. Now done. Okay, so now it has been enforced. And here in the, if you select the user, here in the user MFA settings, so this is the option that you can do. Like whenever the user logs in, so user will have to enter the contact number. These are some additional layer of security. जैसे अगर उसने MFA register किया with the mobile number, so बार बार उसको अपना contact number type करना पड़ेगा SMS भेजने के लिए. This is that option. Otherwise एक बार type कर दिया तो OTP by default ही आपके मोबाइल नंबर पे जाता है. इसके बाद डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग ऐप पासवर्ड जनरेटेड बाय द सिलेक्टेड यूजर. मतलब MFA लगने से पहले जितनी भी जगह पे यूजर लॉगिन था वो सब डिलीट कर दिया जाए. और जब उसका मोबाइल चेंज हुआ, मान लो इन केस द यूजर परचेज अ न्यू मोबाइल फोन, तो उसके सारे के सारे MFA वहां से रिमूव कर दिए जाए, क्योंकि वो नया मोबाइल यूज करेगा अब. सो दीज आर सम एडिशनल सिक्योरिटी. तो जब जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट द यूजर एंड यू कैन ऑलवेज change them. Now let me show you how to log in with the user. हमने MFA तो enable कर दिया. Now let's log in with this user. So I could not copy the password, so let me just change the password of this user. मैंने इसका password copy नहीं किया था. I will just click on the user and I will reset the password here. Then reset. Now it will generate a new password for me. So this is the password, PAHU, Pahu. Now let's log in with this ID into the Azure portal. So I will just copy this user ID and I will open the incognito mode. Here I will just go with portal.azure.com user ID. Then I will just paste this password. So first time we always have to change the password in Azure. So sign in. Now you have to click on next. And it will take you to register with the multi-factor authentication. See, so you have to download the Microsoft Authenticator into your mobile phone. Then I told you in the storage classes also, you have to register from your mobile phone. Then you need to click on next, then next. So there will be one QR code that you need to scan from your mobile phone using the Authenticator ID. So let me do it from my mobile. I have the Authenticator in my mobile phone. In case you don't have, so you guys can also download this. So I will scan. Once it is scanned, then there will be confirmation from your mobile. So it has been scanned from my mobile. Now I can click on next. And once I will click on next, so this notification
will go to my mobile. So 99 is the code that I need to type from my mobile phone. Then click on yes from the mobile. Then the user will be able to log in into the portal. So now I have approved it from my mobile phone. मैंने approve कर दिया. See, notification approved. Now click on next. Then done. Now I have to change the password first time because this is the first login. So I will enter the current password and I can set up the new password accordingly. Then sign in. Then I will be able to sign in into the portal. So I am now logged in with the U1. U1 के ID से login हो गया मैं. See, just cancel. And you can see we are logged in with the U1 ID. Now if I will sign it out, if I sign out, and after the sign out, let me try to log in again with the portal. Then I will enter the password. Sign in. Now it will send the notification in my mobile phone. See. So after entering the password, the notification will go to your mobile phone on the Authenticator app. And from there, you have to enter this 84 number code. Then click on yes from the mobile. Then the user will be able to log in. So this is more secure method and Microsoft is going to take the guarantee of this. And there is no charges to enable the MFA. This is totally free of cost with all the accounts. So you must have the MFA enabled with your accounts. ये सबके अकाउंट में enable होना चाहिए. Now, in case you want to disable the MFA, so the option is again very easy. You can simply go to the users and from there go to the per user MFA. Yes, Rajeshwar and Pooja. यस Both सर. of you. एक्चुअली सर, हेलो सर. Yes. सर एक्चुअली फ्राइडे को मेरे पास एक टिकट आया था कि एक यूजर है, उसका एमएफए वर्क नहीं कर रहा था. तो सर मैंने सारा ट्रबल शूटिंग कर लिया उसमें. लाइक मैंने एमएफए फिर से सेटअप करा दिया और टैप कोड से भी ट्राई किया था मैंने. और उसका मोबाइल का वर्जन चेक किया था. स्टिल सर उसके में रैन एंड टू इनटू समथिंग लाइक कुछ एरर आ रही थी और सेट पासवर्ड लेट्स पे उसका हो ही नहीं पा रहा था. तो सर उस केस में और क्या ट्रबल शूटिंग की जा सकती है? कि मोबाइल फोन में इशू था क्या? नहीं सर, मोबाइल फोन का वर्जन उसका 15 था. नहीं मतलब ऑथेंटिकेशन जा नहीं रहा था मोबाइल फोन में. हाँ सर, मतलब सर ऑथेंटिकेटर ही सेटअप नहीं हो रहा था. मतलब जो करते हैं ना सेट पासवर्ड लेस साइन इन से, तो वहां से ऑथेंटिकेटर ही सेटअप नहीं हो रहा था उसका. हाँ वो फिर मोबाइल फोन के कंपैटिबिलिटी का इशू होगा. इंट्यून पोर्टल यूज करते हो? क्या यूज करते हो आप लोग? हाँ कंपनी हाँ पोर्टल सर, यूज करते हो इंट्यून. ना? हाँ सर, इंट्यून पे भी करा दिया था मैंने सेटअप. इंट्यून भी करा दिया था, उसके बाद भी उसका नहीं कर रहा था सर. और उसका टीम्स एंड आउटलुक भी वर्क नहीं कर रहे थे उसमें. वो मोबाइल फोन का इशू होता है. टीम्स आउटलुक तभी काम करेगा जब कंपनी का जो इंट्यून पोर्टल है मोबाइल पे वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड होगा. और अगर वो कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है उस मोबाइल के ओएस वर्जन के साथ, एंड्रॉइड वगैरह जो भी है, तो उसको पहले अपना फोन अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके वो फिर सपोर्ट करेगा. सर And और this ये सर kind of इसमें. troubleshooting it will be done by the end user support team in the company. तो आप ही लोग करते होगे ये सब troubleshooting. यस सर. क्लाउड सर वाले वो नहीं करेंगे. समटाइम्स. यस सर, तो कभी कभी ये एरर आ जाता है सर. तो हम कल फिर है ना, मैंने जीडीआई टीम को सर फॉरवर्ड किया था. ये मतलब मुझसे हुआ नहीं था और मैंने अपनी सीनियर है उनसे भी डिस्कस किया, तो वहां से भी ये एरर जा ही नहीं रहा था. नहीं वो नहीं जाएगा. वो मोबाइल फोन का इशू है तो फिर कुछ नहीं होने वाला. उसको ओएस अपग्रेड करना पड़ेगा इन दैट केस. और सर क्योंकि ये जब क्या मोबाइल पे कुछ ऑथेंटिक. नहीं चलेगा तो उस केस में वो कंपनी पोर्टल वहाँ रजिस्टर नहीं हो पाता, तब नहीं आता वो फिर. ओके सर. और सर एक और क्वेश्चन था. लाइक ये ऑथेंटिकेटर में क्रिएट अ पास की नेम से एक ऑप्शन आता है, तो इसे कैसे सेटअप करते हैं? उसकी जो अभी साइट दिखा रहा था ना मैं, ये वाली, हाँ. इसमें यस जाके सर. करना पड़ता है. इसमें मैं इसका लिंक दे देता हूँ आप लोगों को. सर बट ये ऑप्शन किस लिए होता है, क्रिएट अ पास की? पास की का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने पिन सेट कर दिया कोई, जैसे मोबाइल में हम पिन सेट करते हैं ना लॉगिन करने का 4 डिजिट का, तो ऐसे ही वहाँ पे पिन सेट कर दिया 4 और 6 डिजिट का. उसके बाद जब वो पिन डालेगा स्क्रीन पे तभी उसके पोर्टल पे लॉगिन होगा या उसके ऐप में लॉगिन होगा. वो पास की होता है. तो पिन सर सेट करना ऑथेंटिकेट. मतलब.
ओके सर, तो ये भी मस्ट होता है क्या सर, ऑथेंटिकेटर को जब सेटअप नहीं, करते हैं ये मस्ट पासवर्डलेस में? ये मस्ट नहीं होता। वो जनरली क्या होता है, एक तो ऑथेंटिकेटर को सिक्योर करने के लिए पास की सेटअप करना पड़ता है कि जब कोई ऑथेंटिकेटर खोले तो कोई डायरेक्टली ना खोल ले। तो उस केस में पास की सेटअप करना वो मस्ट हो जाता है। बट जो लॉगिन का केस होता है वहाँ पे ऑथेंटिकेटर में पास की लगाना ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है, आप एसएमएस पे कोड मंगा रहे हो या ईमेल पे मंगा रहे हो या ऑथेंटिकेटर पे अप्रूवल मंगा रहे हो। बट जो ऑथेंटिकेटर ऐप आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हो उसमें पास की मैंडेटरी होता है कि अगर वो ओपन हो तो उस पर फिर सिक्योरिटी के लिए पास की लगा रहे, जब तक वो ना डाले तो ऑथेंटिकेटर भी ओपन ना हो फिर उस केस में। ओके सर, ओके, गॉट इट। तो इन केस यू वांट टू डिसेबल दिस, अगर एमएफए को डिसेबल करना है तो सीधा इसमें जाके पर यूजर एमएफए में जस्ट सेलेक्ट एंड डिसेबल, यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। सो यू ऑल कैन इनेबल दिस एमएफए इनटू योर पोर्टल विद योर रूट अकाउंट। वैसे तो इनेबल ही होगा बाय डिफॉल्ट, आजकल इनेबल रहता है। एंड देर इज वन मोर लेयर ऑफ सिक्योरिटी विच इज important. So if you scroll down to the intra ID and if you go to the properties, this one, under the properties there will be one option of security defaults. So if I scroll down, there is one option security defaults and it should be enabled. ये भी enable होना चाहिए, तो by default enable होता है आजकल ये भी, but this option should be enabled. If you will keep this option enabled, so in case the MFA is not enabled, still when the root account will try to log in into the Azure portal, when the global admin will try to log in into the Azure portal, so after entering the user ID and password, still the user will be able to enter the OTP sent out on the email. तो अगर MFA मान लो यूजर ने इनेबल नहीं कर रखा है रूट अकाउंट ने, अगर ये ऑप्शन आपका इनेबल है तब भी वो आपको राउट करेगा ओटीपी डालने के लिए। सो दिस इज द ऑप्शन ऑल्सो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन इनेबल दिस। In my case, it is enabled. If you go to manage security defaults, so from here we can enable it. Right now it is enabled. See, it is enabled. If you want to disable it, so you can simply click on disable, then save. You can just give the reason why you are disabling it. ये बता रहा है कि डिसेबल कर दोगे तो कमियां हो जाएगी, वल्नरेबल बन जाएगा आपका पोर्टल, सो हैकिंग इज पॉसिबल। देन अगर आप कोई दूसरा सॉल्यूशन यूज कर रहे हो देन यू कैन डिसेबल इट, अदरवाइज कीप इट इनेबल। So right now it is enabled in my case. मेरा already enabled है, so I will not do it. And see, Microsoft is giving 99.9% of SLA for this. So 99.9% of the account compromisation will be stopped using the multi-factor authentication. मतलब हैकिंग होने के चांस इतने कम हो जाएंगे अगर आपने MFA और ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया तो। सो 80% कॉम्प्रोमाइज रेट कम हो गया है अगर ये सिक्योरिटी डिफॉल्ट का ऑप्शन इनेबल रहता है तो। मतलब पोर्टल हैक होने के चांसेस 80% कम हो गए हैं, और अगर आपने MFA भी लगा रखा है तो 99.9% चांसेस हैकिंग होने के कम हो गए हैं। तो ये दीज टू ऑप्शन शुड बी इनेबल्ड, ये इनेबल रहना चाहिए आपके पोर्टल पे। एंड देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट ऑफ दिस, तो ये सब फ्री है। यस दीपक। सर गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे कि इसमें तो सर आप एज्योर में जो यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें एज्योर का एक्सेस होगा, जो नॉर्मल यूजर्स जो ज्वाइन करते हैं वो यूजर प्रोफाइल कहाँ बनेगी सर? वो एक्टिव डायरेक्टरी पे, नॉर्मल जो ऑन प्रेम एडी होता है ना उस पे। तो सर जैसे कि अगर एज्योर में हम लोग ज्वाइन करते हैं अपन, तो वो हमारा काम नहीं रहेगा सर वो यूजर क्रिएट करना? नहीं, वो एडी टीम करती है। एडी टीम जो होगी ना कंपनी की, वो एजोर एडी भी वही हैंडल करती है और ऑन प्रेम का एडी भी वही हैंडल करेगी। आप लोग एडी के ऊपर काम नहीं करोगे। बट अगर ओके कोई तो छोटी मोटी कंपनी हुई तो वहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। मतलब सिलेबस का भी पार्ट है। दूसरा, कोई छोटी कंपनी हुई तो वहाँ पे आप एजोर एडी हैंडल करोगे। बट अगर कोई स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एडी की अलग से सेपरेट टीम होती है जिसको IAM टीम बोलते हैं, आइडेंटिटी टीम। तो वो बंदे ऑन प्रेम का एडी भी वही मैनेज करते हैं। कोई यूजर आता है उसका अकाउंट बनाना, उसका अकाउंट डिलीट करना, पासवर्ड रीसेट करना, प्लस एजोर एडी के ऊपर सिंक करना, वो भी उन्हीं का काम है सारा। तो उस केस में आप लोग कुछ नहीं करोगे एजोर एडी के ऊपर। तो सर ये कोई मैंडेटरी है क्या सर कि ऑन प्रेम पे जो एडी रहेगा वो उससे लिंक रहेगा, फिर दोनों में अगर यूजर क्रिएट होंगे तो दोनों में शो ये होंगे लिंक या? ये लिंक रहेगा, ये हमेशा लिंक रहेगा। वहाँ पे एक तो टूल सर यूज ऐसा होता नहीं, है एजोर एडी कनेक्ट, उसके थ्रू हमेशा ही सिंक होता है। ऐसा नहीं है आइसोलेटेड नहीं होगा। ऑन प्रेम में जितने भी यूजर्स बने होंगे वो सारे एजोर के पोर्टल पे भी सिंक करेंगे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब किसी कंपनी में सिर्फ एज्योर पे ही हो, यही यूजर बनाते हो?
ऐसा भी होता है, जहाँ पे अगर नॉर्मल एडी यूज ही नहीं हो रहा होगा तो उस केस में एज्योर के ऊपर ही सारे यूजर्स होंगे। बट अगर आपने एज्योर पे यूजर बना दिए ना, तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपके जो वो वाले यूजर होते हैं ना जो सिस्टम पे लॉगिन करते हैं लैपटॉप पे, जी 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 जी। जैसे डोमेन यूजर होते हैं जिसको हम कहते हैं, तो एज्योर वाला यूजर आपके लैपटॉप पे लॉगिन नहीं करता, समझ गए, ये सिर्फ एज्योर पोर्टल पे लॉगिन करता है। बट जो ऑन प्रेम का यूजर होता है, जो आपने नॉर्मल एडी के ऊपर बनाया है, वो यूजर आपके डोमेन वाला होता लैपटॉप पे भी लॉगिन कर जाता है, डोमेन वाले। है। और अगर आपने उसको सिंक कर रखा है, एक फेडरेशन ऑप्शन होता है पासवर्ड बाईपास का, अगर आपने वो इनेबल कर रखा है एज्योर एडी कनेक्ट टूल पे, तो वो यूजर आपके एज्योर पोर्टल पे भी लॉगिन कर जाएगा जो ऑन प्रेम के एडी पे बना हुआ है। बट जो यूजर इस एज्योर पोर्टल पे बना हुआ है, दिस यूजर विल नॉट बी एबल टू लॉग इन टू द डोमेन लैपटॉप। तो इसलिए वहां पे ऑन प्रेम में एडी होता ही होता है। क्लियर? अब ये जरूरी एज्योर नहीं है कि वाले ऑन यूजर। प्रेम में एडी हो। वो वाला जो एडी है, जो एडीडीएस की मैं बात कर रहा हूँ, या तो वो कंपनी ने ऑन प्रेम पे बना रखा होगा, ऑन प्रेम सर्वर लगा के। मोस्टली 98% कंपनीज में ऑन प्रेम पे सर्वर बना के ही एडी लगाया जाता है। 2% कंपनीज ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे उन्होंने फिजिकल सर्वर नहीं लगा रखा, तो वो एज्योर पे एक वीएम बना के और उसके अंदर सर्वर मैनेजर के थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके एडी का सर्वर जो है एज्योर पे भी बना सकती है। ऐसा भी होता है, बट जनरली इन द रियल प्रोडक्शन सिनेरियो 98% कंपनीज का जो ऑन प्रेम एडी होता है वो ऑन प्रेम ही होता है, और उसके बीच में एक सर्वर लगा के एज्योर एडी कनेक्ट का उसको वो सिंक करके एज्योर के एनवायरनमेंट पे भी ले आते हैं। तो ऐसा सिनेरियो होता है कंपनी में। तो दोनों एडी रहेंगे, ओके सर। एज्योर एडी भी रहेगा और आपका नॉर्मल एडी भी रहेगा। और एज्योर एडी से ज्यादा फीचर आपके नॉर्मल एडी में है, मतलब दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ फीचर्स वहाँ पे। ADLDS, ADRMS, ADFS, ADCS, ADDS, स्कीमा, फिर उसके बाद ट्रस्ट रिलेशनशिप। तो असली में जो सर्वर्स के फीचर होते हैं ना अच्छे वाले, वो आपके पुराने वाले एडी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एज्योर एडी, क्योंकि एज्योर एडी तो पैस सर्विस हो गई, तो इन्होंने सिर्फ एज्योर के इंटेंशन से इसको बनाया है। बट जो ऑन प्रेम एडी बनाया गया है, जो ADDS की सर्विस है, उसको उन्होंने यूनिवर्सल अप्रोच के साथ बनाया है कि उसको हम क्लाइंट के साथ भी यूज कर पाएंगे, उसको हम क्लाउड के साथ भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम रेप्लिकेशन सेट कर सकते हैं। जितनी भी ग्रुप पॉलिसी लगती है कंपनी में, जो ऑन प्रेम यूजर्स पे जितनी भी ग्रुप पॉलिसी लगती है वो नॉर्मल वाले एडी से लगती है, और जो एज्योर पोर्टल पे जितनी सिक्योरिटी लगती है वो यहाँ से लगती है एज्योर एडी के ऊपर से। तो बोथ आर डिफरेंट। वो IaaS सर्विस होती है, जो आप नॉर्मल एडी की बात करते हो, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। वहाँ पे आपको सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, एडी भी खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट दिस वन इज ए पैस सर्विस, सो इट इज प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ये इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं लेके आता है एज्योर एडी जितना उसके अंदर ऑप्शन है। आज भी वो ज्यादा चलता है कंपनी में एज कम्पेयर टू एज्योर एडी। बट जहाँ पे क्लाउड है वहाँ पे एज्योर एडी भी रहेगा, प्लस ऑन प्रेम एडी भी रहेगा। एज्योर एडी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एज्योर पोर्टल पे जितने भी काम करवाने हैं, जितने भी एक्सेस देने हैं, उसके लिए एज्योर एडी के थ्रू ही दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस देना है, किसी रिसोर्स पे एक्सेस देना है, तो जितना भी काम है वो सब एज्योर एडी के थ्रू मैनेज होगा। बट जो आपके नॉर्मल एम्प्लॉयज काम करते हैं कंपनी में, जो लैपटॉप पे लॉगिन करते हैं या डेस्कटॉप पे लॉगिन करते हैं विद द डोमेन यूजर अकाउंट्स, वो सारे बनते हैं नॉर्मल एडी के ऊपर, ऑन प्रेम एडी के ऊपर। वो एज्योर एडी के ऊपर सिंक करते हैं, बनते वहां पे हैं। तो अगर उनको कल सर को फ्यूचर में एज्योर का एक्सेस देना है तो उनको फिर यहाँ से दिया जाएगा, ना कि वहां से। सर वही मुझे डाउट था कि मैंने कहा यहाँ पर तो एज्योर पे ही मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसे आप लॉगिन कर रहे हो, ऐसे तो सर सिर्फ पोर्टल पे ही लॉगिन हो पाएगा, लैपटॉप पे तो लॉगिन होगा नहीं उनका। नहीं, लैपटॉप पे नहीं आपने वो। होगा। हाँ। तो सर जैसे कि अगर हम एज अ मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इंजीनियर जब हम वहाँ पे जाते हैं सर, तो क्लाउड इंजीनियर आते हैं, तो हमें भी एक ऐसी पोर्टल का एक्सेस मिलेगा ना सर, यूजर हाँ बना के। हाँ हाँ, आपको ऐसे ही पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। आपका एक यूजर बना दिया जाएगा इसके थ्रू, आपका जो भी ग्लोबल एडमिन होगा वो आपका एक यूजर बना देगा और आपके यूजर को राइट दे देगा। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल सीनियर क्लाउड इंजीनियर हो या फिर जूनियर हो, उस हिसाब से जिस ग्रुप में आपको ऐड करना है, ग्रुप पहले से ही बना होगा, वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देगा। उसके बाद आपको राइट्स मिल जाएंगे, तो आप वो रिसोर्सेज देख पाओगे और इस पोर्टल को यूज कर पाओगे। फुल तो राइट्स इस सर तब मिलते हैं ये व्हेन यू यूजर आप बिकम। बनवा के दिखा रहे थे मुझे। हाँ, वही सब यूजर्स वगैरह मैं दिखा रहा था। ग्रुप ग्रुप और यूजर्स मैंने कल दिखा दिए थे, परमिशन भी मैंने कल दिखा दिए थे कि कैसे करते हैं। करेक्ट है सर, थैंक तुम कल सर क्लास में नहीं ये थे क्या? सर यू सर। एजोर मैं पे जो यूजर्स होते हैं ना, हाँ, ये कौन से यूजर होते हैं? जैसे एजोर एडमिन या यही होता है, या फिर नॉर्मल यूजर का भी यहाँ अकाउंट बन सकता है? नहीं, यहाँ पे उन लोगों का बनता है जिनको आपको क्लाउड पे एक्सेस देना है। ऐसा नहीं है एजोर एडमिन नहीं, डेवलपर्स के अकाउंट भी यहीं पे बनते हैं क्योंकि वो भी क्लाउड यूज करेंगे।
फिर आपके जो टेस्टिंग टीम है उसका भी अकाउंट यहीं पे बनेगा, फिर जो आपके एम्प्लॉयज है, मान लो एचआर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सर्वर क्लाउड पे चल रहा है या उनकी कोई एप्लीकेशन क्लाउड पे है तो उनके अकाउंट भी बनेंगे, सबके बनते हैं। जिन जिन बंदों को क्लाउड की रिक्वायरमेंट है उनके सबके अकाउंट यहाँ पे बनेंगे। क्लियर? और जनरली कंपनी में क्या होता है, कंपनी में अगर ऑन प्रेम एडी के ऊपर हमने कोई अकाउंट बना रखा है तो हमें एजोर एडी पे अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। उस केस में हम वहाँ पे सिंक करते हैं एजोर एडी कनेक्ट टूल लगा के, जितने भी यूजर यहाँ पे चल रहे हैं वो सारे क्लाउड पोर्टल पे अपने आप ही दिखने लग जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो उस केस में आपको अलग से यूजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्लाउड पे, सेम यूजर अकाउंट के थ्रू एजोर पोर्टल पे लॉग इन किया जा सकता है फिर, अगर उनको परमिशन दे दी है तो। हमें बस परमिशन देनी है, फिर उस यूजर में जाके उसको ग्रुप में ऐड करना है और उसको जो भी परमिशन देनी है पोर्टल के लिए, मान लो उसको वीएम का एक्सेस देना है तो वीएम के कंट्रीब्यूटर एक्सेस वाले उसमें डाल दो, यूजर विल बी एबल टू यूज इट। अगर आपने ऑन प्रेम एडी से यूजर का पासवर्ड चेंज किया तो एजोर एडी के यूजर का सेम यूजर का पासवर्ड यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। तो इस लेवल का सिंक होता है वहाँ पे। तो ये जो मैं कल आपको ये टूल दिखा रहा था ना, ये वाला जिसको आप इंट्रा आईडी कनेक्ट टूल बोलते हैं, इस टूल के थ्रू किया जाता है वो सब काम, सिंक किया जाता है उसको, ऑन प्रेम को क्लाउड के ऊपर सिंक किया जाता है फिर। क्लियर? तो Sir, कर I सकते हैं। have one doubt and just want to ask you. यस। Are we going to discuss about the Ansible and Docker, नो Kubernetes, नो नो Terraform? नो 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 AJ400 which is Microsoft certified solution, Microsoft certified Azure DevOps solution expert, that we will discuss. So this is completely about Azure only. So we are not going to discuss about any other tools, right? No, no open source tool will be discussed. Ansible is open source tool that we are not going to discuss. But if Only you the check Azure. in the market, these tools are necessary for complete the DevOps tools, right? If I'm not wrong. If in case you go with the DevOps engineer role, then yes, company ask for it. But if you are specifically going for the Azure DevOps role, then it is not required. The company which is totally using the Azure DevOps for their DevOps infrastructure, so they will ask you the use cases on the Azure DevOps portal only. So in that case, you should know that one. But if you are going with the common DevOps role, so there they will ask you like Ansible, Docker, Kubernetes, then GitOps. Git we will discuss. Git is the common thing. Ansible we are not going to discuss. And other tools, Kubernetes and the Terraform. Terraform is there. Terraform we are going to discuss. That is one of the additional thing that we will be discussing. And in the Azure DevOps, we will go with like Git. We will go with Azure Repos. We will go with CI/CD pipeline with the Azure repository that we will see. So these things are there in the Azure DevOps. So in the normal DevOps, what happens? The CI/CD happens through the Jenkins. But in the Yeah. Azure DevOps, it happens through the Azure pipeline. So Git is common in both the platforms. So Git we will be discussing. And in Azure DevOps, there is one more tool which is called Azure Repository. So that also we will discuss. And Terraform is not part of Azure DevOps, but yes, we will be discussing about that one. So I will tell you the Terraform as well. Okay. Okay. And can you please give me any idea like how many days it's going to be complete this session? This I mean, course this will be course. completed by the end of May. Okay. One Yeah, more thank month. you. Okay. Yeah. So now, yes. So security default option must be enabled in your accounts in the company also and in the personal level also. MFA should be enabled. So you should know how to enable the MFA and you should also know the working of the MFA. Then let's talk about some licenses. ये हमने कर लिया. This is done. These options are also done. Now I will discuss about licenses. Then we will talk about PIM, then the administrative units. So as I mentioned yesterday, we are using the free license, Microsoft Intra ID free. If you check in the overview, you can see there are some licenses in Azure. If you just scroll down and if you go to the licenses option, so in the Intra ID, you will see some categories of the license. If you go to all products, and here there will be one option of try and buy. अभी ये refresh हो रहा है. They have changed the option actually. You need to go to the Office 365 Admin Center to assign the license. तो यहाँ से इन्होंने license का option हटा दिया है. But let me tell you how the licensing works in Azure. उसके बाद मैं आपको option दिखाता हूँ.
We will not upgrade because that will be costly, but I will just discuss about the licensing. आप लोग भी मत यूज करना पेड वाले लाइसेंस, because you have to pay the fixed price then. This is not the official document. Let me go to the official one first. And licenses वगैरह भी आपका काम नहीं होगा. Again, it will be done by the AD team, and if AD team is not there, then in some company Office 365 team will be responsible for the license assignment. क्योंकि वहाँ पे टीम्स का भी लाइसेंस देना पड़ता है कंपनी में पर यूजर को, जो MS टीम्स यूज होता है उसका, फिर आपका शेयर पॉइंट का लाइसेंस. तो इस वजह से लाइसेंसिंग का पार्ट जो है वो Office 365 को दे दिया जाता है कंपनी में. बट लेट्स सी द प्लान्स एंड प्राइसिंग. So let's go with the official link of Microsoft. See, so if I talk about the licensing, so here we have some different type of licenses in Azure Active Directory. The first one is free. This one is totally free with the portal holders. जिनके पास Azure के portal है, उनके पास ये वाले license free रहते हैं. And in the free you can create the users, you can set the MFA, you can create the groups. जितना भी हमने practical किया हम सब कुछ कर सकते हैं. Even we can use all these options and there will be no charges for that. मतलब वहाँ पे यूजर क्रिएशन के चार्जेस नहीं लगते. So Office 365 users can also be created and normal security users can also be created, जैसे हम कल कर रहे थे. तो 365 जो होता है Office 365 पोर्टल, वहाँ पे भी Microsoft Intra ID का फ्री लाइसेंस होता है, और जो Azure का पोर्टल होता है उसमें भी Office 365 का मतलब Intra ID का फ्री लाइसेंस आप यूज कर सकते हो. So in both the scenarios it is freely available. Second category of the paid license is P1, Intra ID P1. P1 means premium one. So this license is available with the Azure AD as well, plus it is available with Office 365 E3 as well. So E3 means Enterprise 3. So जिनके पास Office 365 का E3 लाइसेंस है, उनके पास by default Intra ID का P1 लाइसेंस होगा. मतलब जिन कंपनी ने Office 365 का E3 लाइसेंस परचेज कर रखा है, Enterprise 3, by default Microsoft will give them Intra ID P1 license free of cost. मतलब ये इसका एक पार्ट है इस पैकेज का. तो जिन्होंने ये परचेज कर लिया उनके पास ये भी आ जाता है कंपनी में. एंड इट इज यूज्ड इन स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज. ये वाला लाइसेंस स्मॉल से मीडियम साइज कंपनी में यूज होता है. देन कम्स द मीडिएटर. ये वाला जो लाइसेंस है इंट्रा आईडी P2, इट इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट विद Microsoft 365 E5. मतलब जिनके पास ये वाला लाइसेंस है कंपनी में Office 365 E5 वाला, उनको बाय डिफॉल्ट ये P2 मिल जाता है. अगर आपने ये परचेज किया है Azure के लिए, देन यू विल ऑल्सो गेट E5 लाइसेंस ऑफ द Microsoft 365. तो ये दोनों एक ही पैकेज में इंक्लूड होते हैं. तो ये थोड़ा मिड साइज कंपनीज में मिलेगा आपको. देन कम्स द इंट्रासूट. सो इंट्रासूट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ योर एंटरप्राइज प्लस P1 एंड P2. तो P1 एंड P2 के जितने भी फैसिलिटीज प्लस एंटरप्राइज में जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है, जैसे प्राइवेट एक्सेस चाहिए, इंटरनेट एक्सेस देना है किसी को, गवर्नेंस लगाना है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है, या वेरीफाइड आईडी करके एक ऑप्शन होता है, जैसे आपके फेसबुक में होता है कैप्चा लगा के आपकी आईडी वेरीफाई करते हैं वेदर यू आर द राइट पर्सन और नॉट. तो वो सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी इंट्रासूट लाइसेंसेस में अवेलेबल है. और इंट्रासूट यूज करने के लिए आपके पास जो है P1 का लाइसेंस होना जरूरी है. मतलब मिनिमम P1 से आप अपग्रेड करके इसमें जाते हो और ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है. सो ये लाइसेंसेस वाला पार्ट है. इफ यू गो टू द Azure portal, in the Azure portal there are the licenses option. So earlier the option was there to upgrade the licenses from here as well. पहले यहाँ से जाके भी कर लेते थे हम, all products में जाके try and buy का option था. But nowadays this has been routed to the Office 365 admin center. तो अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो हमें Office 365 के admin center में login करना पड़ेगा like this. So let me login first. इसका भी access होता है, आप लोगों के पास भी होगा. You can log in with your register ID. और अगर माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया होगा तो कुछ नहीं कर सकते. बंद कर दिया है. यू कैन नॉट लॉग इन. सो अब ये अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इन्होंने कि आप यहाँ से कंपनी आईडी पे ही लॉग इन कर सकते हो.
So from the Office 365 Center, you can assign the license. जितने भी यूजर बने होंगे Office 365 पोर्टल पे, फॉर एग्जाम्पल 10 यूजर्स बने हैं, तो उनके नाम दिखाई देंगे और उनके ऊपर क्लिक करके देन देयर विल बी ऑप्शन कि आप कौन सा लाइसेंस उनको असाइन करना चाहते हो, P1 P2। ये दो लाइसेंस तो आपको दिखेंगे। जो लास्ट वाला था इंटरप्राइज वाला, दैट लाइसेंस विल ओनली कम व्हेन यू विल परचेज इट सेपरेटली फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। मतलब ये P1 P2 के तो आपके कंट्रोल में है कि आप कौन सा लाइसेंस यूज करना चाहते हो, बट इंट्रा सूट का जो लाइसेंस है, दिस हैज टू बी परचेज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट सेपरेटली, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड होता है कि आपने इसको कितने टाइम के लिए लेना है। तो ये सारे लाइसेंस अब जो है यहाँ से असाइन होते हैं। देखो इन्होंने अब नया फीचर डाल दिया, पहले एजोर पोर्टल से हो जाते थे, बट नाउ डेज इट हैज टू बी असाइन फ्रॉम द ऑफिस 365। इसका मतलब है पूरा लाइसेंसिंग पार्ट अब किसके पास आ गया कंपनी में, O365 टीम के पास। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कैसे लाइसेंस असाइन होते हैं। तो ये आपका काम नहीं है, बट पढ़ने के लिए आप देख सकते हो हाउ टू असाइन द लाइसेंस। तो ये यहाँ से जाके देन यू कैन असाइन द लाइसेंस। सो एवरी स्टेप इज मेंशन्ड हियर। ऐसे ही एक्स्ट्रा अगर देखना है, सो यू कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा ये। अब बहुत सारे फीचर ऐसे हैं एज़्योर के एडी के ऊपर दैट कैन बी यूज्ड इफ यू हैव द लाइसेंसेस। मतलब फ्री वाले में आप यूज नहीं कर सकते। वन एग्जांपल इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर or administrative units. So for this practical, you must have a paid license like P1, P2 या Intra ID Connect वाला। PIM, Privilege Identity Management. For this also we need the license. And there is one more option which is called Conditional Access Policy. So for Conditional Access Policy also you need one of the premium licenses. Conditional Access means it is like advanced than the MFA. MFA से एडवांस होता है ये। इन द कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी यू कैन असाइन मल्टीपल MFA ऑप्शन एट द सेम टाइम। मतलब आपने मल्टीपल ऑप्शन लगा दिया कि आपने जब पासवर्ड डाला, आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड आपके मोबाइल पे भी SMS जाएगा, आपके ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू भी आप अप्रूव कर सकते हो, आपके ईमेल के ऊपर भी OTP जाएगा, वहां से भी कर सकते हो। सो यू विल हैव द मल्टीपल ऑप्शन। मान लो बाय चांस आपका मोबाइल खो गया, let's suppose you have set up the MFA and it is through the multi-factor authentication app and your mobile phone got lost. अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो गया उस केस में, so you will not be able to log in into the portal then। फिर आपको वो रीसेट करवाना पड़ेगा एडमिन टीम को रिक्वेस्ट भेज के। They will remove your phone from the admin portal, तब जाके होगा दोबारा रजिस्टर करो। But in the conditional access what happens, you can define multiple methods at the same time। आपने वहाँ पे लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेटर ऐप भी इनेबल कर दिया, आपने वहाँ पे SMS भी इनेबल कर दिया और आपने कॉल भी इनेबल कर दिया। कॉल के थ्रू जैसे कोड बताता है ना IBR में, तो आपने वो भी इनेबल कर दिया। सो इन केस इफ वन इज नॉट वर्किंग, सो यू कैन यूज द सेकंड मेथड। मान लो आपके SMS आ ही नहीं रहा मोबाइल पे बहुत टाइम से, सो यू कैन use the call method। Call will come to your mobile, then the OTP will be sent out, so you can log in with that। उसके थ्रू भी नहीं हो रहा है, you can just switch to the authenticator app option। So in the conditional access you will get multiple option, plus you can also assign the country based login here as well। मतलब country based login भी लगा सकते हो। जैसे if you want that login should only happen from the Indian IP, if person has moved to another country and if he or she is trying to log in, so login should be denied। मतलब ये ज्यादा सिक्योर है। If any hacker, let's suppose if any hacker has got the access of your email ID, मान लो किसी हैकर ने आपका ईमेल ही हैक कर दिया, आपका OTP जाता था ईमेल के ऊपर। अब उस केस में जो है, if you have enabled the conditional access policy, so in the conditional access what is going to happen, अगर ईमेल हैक हो गया है, the security team will get to know, so वो इसको तुरंत रिवोक कर देगी यहाँ से जाके। एंड वी कैन स्विच टू अनदर मेथड लाइक SMS पे कोड आ जाए मेरा, उससे लॉग इन कर लूँ। या फिर मैंने कंट्री डिसेबल कर दिया कि इन केस इफ समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, सो लॉग इन शुड नॉट हैपन। सो ये सारी चीजें इसके ऊपर होती है। दिस इज पेड, ये फ्री नहीं है। Microsoft will charge you for this, so if you want to use the conditional access policy, you will have to pay the cost। इसके लिए पेमेंट होती है, and this facility is only available with the premium licenses। तो ये फ्री वाले लाइसेंस में अवेलेबल नहीं है। If you want to see how to enable the conditional access, so you can just go through with the official document। So it is also very simple। You can just go through with the document and you will get to know the step। ऐसे ऐसे करके enable होता है, देखो।
सिक्योरिटी में जाके, प्रोटेक्ट में जाके, देन कंडीशनल एक्सेस, देन यू हैव टू चूज कि आप यहाँ पे आईपी का भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। जैसे आपने कोई आईपी डाल दी कि इसी आईपी से एज्योर का पोर्टल खुलेगा और किसी आईपी से नहीं खुलेगा। इट मीन्स मेरे लैपटॉप का जो पब्लिक आईपी है, अगर मैं उससे लॉगिन करके एज्योर पोर्टल खोलूंगा देन ओनली इट विल ओपन। किसी और बंदे ने अगर पोर्टल एक्सेस करने का ट्राई किया सो इट विल बी डिनाइड। सो इससे हैकिंग मतलब 99.99% तक रुक सकती है, क्योंकि हैकर किसी भी लोकेशन में हो सकता है। मान लो मैंने अगर अपना लैपटॉप का आईपी वाइट लिस्ट कर दिया कि सिर्फ मेरे पब्लिक आईपी पे ही मैं एज्योर पोर्टल खोल सकता हूँ, इवन मैं अपने घर के ऊपर भी एज्योर पोर्टल नहीं खोल पाऊंगा। अगर मैं अपने घर से जाके पर्सनल लैपटॉप पे एज्योर पोर्टल खोल रहा हूँ या फिर ऑफिस के लैपटॉप पे घर पे लॉगिन करके खोल रहा हूँ और मैंने अगर उस आईपी को वाइट लिस्ट नहीं करवाया, सो आई विल नॉट बी एबल टू लॉग इन। तो इस लेवल की सिक्योरिटी है यहाँ पे। सो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में कंडीशनल एक्सेस यूज होता है, वहाँ पे एमएफए तो फ्री वाला हो गया, वो एमएफए से भी ऊपर के लेवल की सिक्योरिटी यूज करते हैं कंडीशनल एक्सेस। आईपी वाइट लिस्ट कर देंगे कि सिर्फ इसी लैपटॉप पे ही आपका पोर्टल खुलेगा। तो अगर किसी हैकर ने हैक भी कर लिया तो वो खोल नहीं पाएगा, बिकॉज उसके लैपटॉप की आईपी वाइट लिस्टेड नहीं है। तो यू कैन डिफाइन द नेम लोकेशन, आप कंट्री डिफाइन कर सकते हो कि इसी कंट्री के ऊपर आपका ये खुलेगा, अदरवाइज कहीं और नहीं खुलेगा। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। वीपीएन कनेक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो कि एज्योर पोर्टल वीपीएन के ऊपर ही खुलेगा और कहीं नहीं खुलेगा। बट दीज ऑल ऑप्शंस आर पेड। सो लगाने का ऑप्शन यहाँ से दिख जाएगा आपको। इफ यू वांट टू जस्ट सी हाउ टू इनेबल दिस, सो यू कैन जस्ट डिस्कस अबाउट इट। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ही इजी सा है, बस सिक्योरिटी पे जाके इसको इनेबल करना होता है। सो इट्स नॉट ए वेरी बिग गेम। यू कैन जस्ट गो टू द सिक्योरिटी ऑप्शन, ये वाला एज्योर एडी में, एंड फ्रॉम हियर देयर विल बी ऑप्शन ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये रहा। तो यहीं पे कंडीशनल एक्सेस भी मिल जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल लिंक्स, ये सब आपके लिंक है। ऑन द लेफ्ट साइड इफ यू गो टू द प्रोटेक्ट, सो हियर ऑल्सो यू कैन गेट कंडीशनल एक्सेस। तो यहाँ से जाके पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है, बट फॉर द पॉलिसी यू मस्ट हैव ए प्रीमियम लाइसेंस, इसलिए आपका ये ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। देखो, व्हेन यू विल बी हैविंग द प्रीमियम लाइसेंसेस देन यू कैन इनेबल दिस ऑप्शन। पॉलिसी इनेबल करो, किसी का आईपी वाइट लिस्ट करना है वो करो, वो नहीं करना है तो उसको स्किप करो, और जो भी मेथड्स आपको कॉन्फ़िगर करने हैं यू कैन कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंगली। तो इसके एडिशनल चार्जेस हो। So we will not be able to see this practical, but we should know about it. पता होना चाहिए. There is one more option, administrative units. Yesterday, if you remember, we were discussing about the groups. कल हम groups की बातें कर रहे थे. तो group में हमने क्या किया था? Honor डाला था कल. There are owners and there are members. दो चीजें हमने कल समझी थी. तो जो बंदा ग्रुप का ऑनर है वो बंदा एक्स्ट्रा ऑनर मेंबर्स भी ऐड कर सकता है, प्लस दैट पर्सन कैन रिमूव एग्जिस्टिंग ओनर्स एज वेल। दिस वाज द सिनेरियो। मान लो मैंने कोई ग्रुप बना दिया कंपनी में, आई हैव ए ग्रुप बट आई हैव नॉट डिफाइंड एनी ओनर, मैंने कोई ओनर नहीं बनाया। अगर मैंने ऐसा कर दिया, इफ देयर इज अ ग्रुप बट देयर इज नो ओनर, सिर्फ मेंबर मेंबर ऐड कर दिए हैं आपने, उस केस में अगर इन केस मान लो एक तो हो गया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल एडमिन सब तो नहीं होंगे, नॉट एवरीवन विल बी द ग्लोबल एडमिन। मान लो आप एक यूजर हो, यू आर U1, यू आर द क्लाउड एडमिन, और आपके पास यूएससी का रोल है, यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर का, या आपके पास कंट्रीब्यूटर रोल है एज्योर पोर्टल पे। सो आपने ग्रुप तो बना दिया बड़े मजे से, द ग्रुप गॉट क्रिएटेड, आपने उसमें मेंबर्स भी ऐड कर दिए, बट आप ऑनर ऐड करना भूल गए, आपने ऑनर ऐड नहीं किया। अब फ्यूचर में क्या होगा, अगर आपने ऑनर ऐड नहीं किया तो आपके पास खुद राइट नहीं है, यू डोंट हैव द राइट टू रिमूव एनी ऑनर, जबकि आपके पास यूएससी और कंट्रीब्यूटर परमिशन है, बट आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी मेंबर को हटा दो, क्योंकि आप खुद ऑनर नहीं हो ना उस ग्रुप के, यू आर जस्ट द क्रिएटर, आपने बना के छोड़ दिया। नाउ यू कैन नॉट रिमूव एनी ऑनर एंड यू कैन नॉट एड एनी ऑनर एज वेल, एंड ऑल्सो यू डोंट हैव द राइट टू डिलीट दैट ग्रुप। बना तो दोगे, डिलीट नहीं कर पाओगे। सो ऑनर इज इम्पोर्टेंट, जो ऑनर होगा वो बंदा ये सब कुछ कर लेगा, और जो ग्लोबल एडमिन होगा वो तो सब कुछ कर लेगा। सो फॉर सच काइंड ऑफ मैनेजमेंट देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, क्योंकि ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे ग्रुप का ऑनर हम किसी और को क्यों बनाएंगे सर, जरूरी थोड़ी हम ग्रुप का ऑनर ही बनाएंगे हमेशा। हम तो एडमिन है क्लाउड के, सो वी मस्ट बी द ऑनर, हमें तो ऑनर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। बट जिस बंदे ने ग्रुप की रिक्वेस्ट करी है जरूरी नहीं है कि वो ऑनर भी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ HR team has demanded for any group, so it doesn't mean that their manager will become the owner.
नहीं चाहती कंपनी बनाना, ऐसे तो वो किसी को भी ऐड करेगा, किसी को भी रिमूव करते रहेगा, जब मर्जी कुछ भी करेगा। सो बहुत सी कंपनी में वी डोंट गिव द ऑनर एक्सेस ऑफ द ग्रुप टू एनी अदर यूजर। वहां पे सिर्फ मेंबर ऐड किए जाते हैं और ये सब नहीं किया जाता। बट द क्वेश्चन इज हु विल बिकम द ऑनर देन। सो ऑनर कौन बनेगा? तो ऑनर बनेगा आईटी का क्लाउड एडमिन। क्लाउड एडमिन को ऑनर वाले सेक्शन में ऐड किया जाएगा हमेशा। दिस विल हैपन। बट द सिनेरियो इज, मान लो आपने आज मेरे को ऐड किया एज ए ऑनर, मैं एज ए ऑनर ऐड हो गया आज की डेट में, कल को मैं जॉब छोड़ के चला गया, देन मैं चला गया। अब जब कंपनी से कोई एम्प्लॉय जाता है तो इतनी चीजें थोड़ी ना चेक करते हैं हम कि कौन किस किस चीज का मेंबर है, क्या है, सीधा उसका अकाउंट डिसेबल कर देते हैं। एक एक करके चेक करने थोड़ी बैठेंगे व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्सेस द यूजर हैव। तो उसका अकाउंट डिसेबल हो गया। व्हेन द अकाउंट इज गोइंग टू गेट डिसेबल्ड, अब उसकी ऑनरशिप तो खत्म हो गई ना ग्रुप पे। जब उसकी ओनरशिप खुद खत्म हो गई और कल को रिक्वेस्ट आ गई टिकट पे कि और मेंबर ऐड करके दो हमें इस ग्रुप में, सम न्यू एम्प्लॉयज आर ज्वाइनिंग, कौन करेगा? आप नहीं होने वाला। अब इन चीजों के लिए फिर से आप जाओगे उसके पास, ग्लोबल एडमिन के पास, वो तो आर्किटेक्ट या एसएमई होगा ना। सो दिस इज नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस इन एज्योर। ये सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं कर रहे हो आप, you are losing the control in such scenario. So that is why there is one option which is called administrative units, admin units. So this option has been developed to take the control of all the groups in the company. जितने भी ग्रुप आप कंपनी में बनाते हो उनको सबको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मेंबर बना के चलो। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया तो जो भी बंदा इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का ऑनर है, मतलब पूरी की पूरी क्लाउड की टीम, they will have the by default access to all the groups. वो बाय डिफॉल्ट सारे ग्रुप के ऑनर है, चाहे आप उसमें डालो ऑनर में या मत डालो। अगर आपका ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर में बना हुआ है, इट्स लाइक ओयू, जैसे ओयू होते हैं ना कंपनी में, ग्रुप होते हैं जो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट खुद एक ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर अगर आपने ग्रुप बना दिया तो पूरी की पूरी क्लाउड टीम, जो आपकी टीम ग्लोबल एडमिन है, जो आपके पोर्टल का यूएसई एडमिन है, जो आपके पोर्टल का कंट्रीब्यूटर है आईटी टीम में, सबके पास इन सारे ग्रुप्स का एक्सेस हो जाएगा ऑनर वाला। तो अगर आप यहाँ पे ऑनर नहीं भी डालोगे, स्टिल द आईटी टीम विल हैव द कंट्रोल ऑन ऑल द ग्रुप्स, ऑन ऑल द हिरार्कीज। तो फ्यूचर में कोई छोड़ के जाता है नहीं जाता, इससे कोई मैटर नहीं करता अब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का पूरा कंट्रोल जो है पूरे ग्रुप के पास रहता है। द पर्सन हु हैव द राइट, दे विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। So this is why we can maintain the centralized security of all the groups. So अलग से एक एक ग्रुप पे ऑनर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सबको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर बनाओ एंड वी कैन यूटिलाइज दिस। बट इसका प्रैक्टिकल तो हम नहीं देख पाएंगे, अगेन दिस रिक्वायर्स द प्रीमियम लाइसेंस। बट लेट मी शो यू, इफ आई गो टू द इंट्रा आईडी प्लेटफॉर्म, so on the left side there is one option administrative unit. So if I click on the administrative unit, यहाँ पे सीधा नाम देना है हमें, मतलब बना लोगे बट बहुत सारे ऑप्शंस मेंबरशिप के नहीं आएंगे। जैसे मान लो मैंने बनाया AU-01, क्यों बना रहे हैं, यू कैन डिफाइन द डिस्क्रिप्शन, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या रोल मिलने वाला है, मतलब इसको आप क्या पावर दोगे। सो यू हैव ऑथेंटिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। सो जिसको आपने ये वाली पावर दे दी, द पर्सन विल बी एबल टू मैनेज द इंट्रा आईडी। और सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या हो गई, पासवर्ड एडमिन तो हो गया पासवर्ड चेंज करने का, ये वाली पावर सबसे ज्यादा बड़ी है, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। सो इफ समवन इज द यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब यूएसी का एडमिन है, ही कैन मैनेज एवरीथिंग, ग्रुप क्रिएट करना, ग्रुप को रीसेट करना, यूजर को मैनेज करना, सब कुछ कर लेगा वो। सो इफ आई गिव दिस पावर, इफ आई विल ऐड दिस, अब इसमें किसको पावर देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वॉन्ट टू गिव दिस अथॉरिटी टू U1, मैं U1 को देना चाहता हूँ, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव दिस टू दिस यूजर, फॉर एग्जाम्पल। ऐड कर दिया, नेक्स्ट किया, इस नाम से एडमिन यूनिट बनेगा और इन दो यूजर के पास इस एडमिन यूनिट को कंट्रोल करने की पावर है, सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। और कौन सी पावर है, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की। सो देखो ये कह रहा है फेल हो गया, फेल क्यों हुआ, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द लाइसेंसिंग, ये सब लाइसेंसिंग की वजह से होता है। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन ऐड, इफ यू गो टू द यूजर्स फर्दर, अभी तक कोई यूजर नहीं आ रहा, दोबारा से ऐड करने का ट्राई करो, नाउ इट गॉट एडिट। सो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आपको यूजर ऐड नहीं करने दे रहा था, बट डिप्लॉयमेंट के बाद आपको करने देगा। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रीमियम लाइसेंसेस।
in the if you don't have the premium licenses it will not allow you to add the users during the deployment. अब आप इसमें मल्टी यूजर्स ऐड कर सकते हो। अब इसी के अंदर आप ग्रुप बनाओ, जो आपको नया ग्रुप बनाना है ना एयू के अंडर बनाओ आप। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, वी यूज टू गो टू द ग्रुप्स, हम यहाँ जाके बनाते थे, ये सिखाया था मैंने आपको। बट इफ यू वांट टू टेक द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, सो जाओ इसमें इंट्रा आईडी में, गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और यहाँ पे इस एयू के अंदर में जाओ एंड गो टू द ग्रुप्स और यहाँ जाके ग्रुप बनाओ अब आपकी डेट में। तो जो ग्रुप इसके अंडर में होंगे दे विल बी अंडर द कंट्रोल। किसके कंट्रोल में होंगे? जो यूजर्स आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस बंदे के। So if I go to the groups here, if I click on groups, तो वही देखो सारा ऑप्शन आ गया, किस नाम से ग्रुप बनाना है, फॉर एग्जांपल GP01। उसके बाद ऑनर नहीं भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर ऐड कर दो, मेंबर फ्यूचर में भी ऐड कर सकते हैं हम। U1 इज द मेंबर फॉर एग्जांपल, क्रिएट, तो ग्रुप बन गया। सब कुछ वही है बट वो इसके अंडर में है। अब रिफ्रेश, entire browser has to be refreshed. It will take some time, उसके बाद आ जाएगा। तो इस AU को क्या पावर देनी है? You can simply go here and you can define the power. इस पूरे AU को जैसे हमने यूजर एडमिन का कंट्रोल दिया था, सो इट इज प्रिविलेज रोल, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट यू मस्ट हैव द प्रीमियम लाइसेंस। ये देखो क्या रहा है ना, इस पूरे AU को क्या पावर देना चाहते हो, उसके लिए आपके पास ऐड असाइनमेंट का ऑप्शन नहीं है। यू मस्ट हैव ए प्रीमियम लाइसेंस फॉर दिस। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल यहाँ प्रीमियम लाइसेंस की वजह से AU में नहीं करने देगा, बट यस बनाना कैसे होता है वो हमें पता लग ही रहा है। यूजर कैसे ऐड करना है, ग्रुप यहाँ से क्रिएट करना है, और इसका ऑनर नहीं भी होगा स्टिल जो जिस बंदे के पास इसके राइट्स होंगे AU के, वो इसका ऑनर है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ऑनर ऐड करने की जरूरत नहीं है अब, बिकॉज दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माई AU। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के कंट्रोल में है, तो अलग से कोई ऑनर ऐड करने की जरूरत नहीं है। द ऑनर ऑफ द AU विल बिकम द ऑनर ऑफ ऑल द ग्रुप्स इनसाइड द AU। तो ये बनाना, बाकी यहाँ से जो भी एक्सेस देना होगा वो फर्स्ट टाइम दिया जाता है। पूरे AU पे क्या एक्सेस होगा क्लाउड टीम का, तो वो यहाँ से ऐड करके देन उन यूजर्स को ऐड करके रख दिया जाता है। कि मान लो मेरी क्लाउड टीम में 10 पीपल काम कर रहे हैं, सो दीज 10 यूजर्स विल बिकम द मेंबर ऑफ द AU असाइनमेंट। फिर इन 10 के पास राइट होंगे, वो कुछ भी ग्रुप या कोई भी यूजर जो AU के अंडर में है, दे विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। उनके पासवर्ड रीसेट करना, उनकी मेंबरशिप हटाना, उनको डिलीट करना, रीनेम करना, सो दे कैन डू एवरीथिंग। उनके पास सारे राइट्स होंगे फिर। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। नाउ लेट मी डिलीट दिस। तो जो जो प्रैक्टिकल करोगे आप उनको हटा लेना, मैनुअली जा जाके डिलीट करना पड़ता है। नाउ इट इज डन। नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन विच इज कॉल्ड प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, PIM। So there is one more option which is called PIM, Privilege Identity Management. So what is this option all about? Generally what happens, yesterday when we were giving the permission, whenever we give the permission to any user or any group, so you might have noticed that when I give the permission, what I do, I simply, let's suppose I have a group, I have a user with the name of U1. Now if I create a group, right now I have one group here with the name of GP01. So this is my group, and you might have noticed that this group was the part of administrative unit. So I have deleted the administrative unit, but the group will always be there. Although the owner access will not be given, you have to add the owner separately then. If the administrative unit has been removed, your group will be available in the normal group area, but you have to add the owner in this case because there is no owner right now. So this is the group, and here if I will add some member, for example, if I just add any member, so you can see U1 is the member because I did it few minutes back. So U1 is the member, and if I want to assign any permission to this group, then what we do, we simply go to the groups area. This is the group. Suppose I want to give the permission on one of the resource group. Let me create one resource group here. It is a blank resource group that I will create. For example, RG01. It will be in the UK South.
So in the UK South, I have created one of the group, for example, one of the resource group. So I have a blank resource group and I want to give the access of this resource group to someone. Let me refresh. So I want to give the access of this resource group to someone. So what I can do, I can simply click on the resource group. I can go to the IAM. From here, I can add the assignment. Add, then add role assignment. This is the way I give the permission, right? I can, for example, I want to give the reader access. So I will just click on this, click on next. Here, I can add the member. So I want to give the access to the group directly. So I have to choose my group. So this is my group, GP01. Select it. And one member is the part of this group. So simply click on next. Now there is one option. If you click on next, there is one option, conditions. But you might have noticed that when I click on next, the condition option is getting skipped. ये छूट जाता है देखो आपका. I am in the member page right now. If I click on next, so I should go to the condition option, but instead of the condition, I am going to review plus assign. So this condition option is not getting highlighted for me. So what is this condition option? This is called Privilege Identity Management, PIM. So this is PIM option, Privilege Identity Management. So what is this option all about? So here you can define the condition. Whenever I give the permission to someone, it is the permanent permission that I am giving. For example, if I will give the reader access to this group, so this is a permanent condition. This is a permanent permission. If I will delete this assignment, then it will be removed. But if, let's say, I want to define any condition that this permission should only be valid for 8 hours. After 8 hours, the permission should be automatically revoked. 8 घंटे के लिए permission मिले, उसके बाद अपने आप हट जाए. So that is not possible this way. If you will click on review plus assign, the group members will get the permission of reader on the entire resource group RG01. But if you want to give them the permission only for a specific minutes or a specific hours or a specific days, for example, there is some auditing work going on and I just want to give them the permission of 5 days. After 5 days, the permission should be automatically revoked. Otherwise, I will have to keep the track of everything. If I will not do the things this way, I will have to keep the track. If I want to remove the permission after 5 days, I will have to keep track of everything. I will have to go to the group. I have to remove the membership. And in the biggest infrastructure, it is not possible. You cannot keep track of everything on regular basis. So this is why the PIM option has been designed in the Azure Privilege Identity Management. Using the Privilege Identity Management, you can define the condition. There will be a timer that, let's suppose you want to allow the permission for 2 hours only. So you can mention the 2 hours of time. Once the 2 hours are over, then the permission will be revoked automatically. You don't have to do anything. This permission membership will be removed automatically from the portal. So this is one of the secure method that we have in the Azure. And this is only available with the premium licenses P1 and P2. So that is why we cannot do this. So condition का option हमारे पास नहीं आएगा. In other scenario, there is one more use of PIM. There is one more layer of security in the PIM. What happens? So what happens? See, there is one scenario where you want that you have assigned the permission to someone. आपने किसी को permission दी. For example, you have given the permission to U1 to use this resource group and you have given the reader access. Now, it will add additional layer of security. You have defined a time that it is going to valid for 8 hours only. 8 घंटे की आपने permission दे दी. But it doesn't mean that user will get the permission for 8 hours directly. ऐसा नहीं है आपने 8 घंटे की दी तो 8 घंटे मिल जाएंगे. No, user will have to activate the permission also. When the user U1 will log in into their Azure portal, so this U1 user will have to activate this permission that you have been granted 8 hours of access. So user will have to click on approve.
Suppose we have just given the permission of 8 hours, हमने 8 घंटे की परमिशन तो दे दी, but this user have not used it, उसने तो यूज ही नहीं किया ना, उसने खोल के तक नहीं देगा, फिर तो आइडल परमिशन हो गई. After 8 hours it is going to get revoked. So user will have to approve the permission. Suppose today is Saturday Sunday and we have granted the permission of 8 hours, तो Saturday Sunday वो थोड़ी ना कुछ करेगा. So when he will come on Monday, he will have to approve the permission from his ID. Then the timer will be activated. So this is also one of the additional layer of security. And how he is going to activate? So when he will log in into the Azure portal, he will search for the PIM, Privilege Identity Management, this one. He will just open this, and from here, what he will do, he will go to the task, and under the task, there will be option of approve request. So whenever there will be any request, it will come here, and user will have to click on approve or deny. And same goes with the admin also. If I have granted the permission to someone, and if I feel कि assign तो कर दी, I have given it for 8 hours, but 8 hours तक भी नहीं चलने दूंगा. I will not keep it alive for 8 hours. उससे पहले ही खत्म कर दूंगा. So I can simply go to this area, and from here I can deny the permission. Automatically on the spot the permission will be revoked. So this option is also there, and it is not part of your syllabus. It is part of AJ 305 और AJ 500. ये जो मैंने आपको दो टॉपिक बताए ना, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, the conditional access and the administrative unit, this is the part of AZ 305 and AZ 500. तो ये आर्किटेक्ट लेवल के टॉपिक्स थे और सिक्योरिटी लेवल के टॉपिक्स थे. एडिशनल आपको स्टेप बता दिया मैंने, because it is free license, so we cannot see this practical. But हाँ, AJ 305 के केस में तो फिर प्रीमियम लाइसेंस यूज करना पड़ता है. When I teach AJ 305, so I use it. मेरे पास अलग से भी पोर्टल है, मैं उसमें एक्टिवेट करता हूँ उसी टाइम जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अदरवाइज देयर आर फिक्स चार्जेस, सो आई डोंट जनरली यूज इट. तो ग्रुप्स यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं हम, रोल्स अप्रूव कर सकते हैं, किसी रिसोर्स पे परमिशन देनी है, ये बहुत काम की चीज़ है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट. लेट्स सपोज आई ओनली वांट टू गिव द परमिशन ऑन ए PM फॉर 10 hours. तो देके यहाँ से अप्रूव कर दो, इट विल गेट एक्टिवेटेड. डिनाई करोगे तो उसी टाइम खत्म. So this is one of the advanced option that we have. एक्सेस रिव्यू करने हैं कि मैंने किस किस को क्या क्या परमिशन अभी दे रखी है और किसका कब एक्सपायर होने वाला है. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन समवन द परमिशन फॉर 24 hours, तो कब एक्सपायर होने वाला है, कब तक के लिए दे रखी है, तो सब यहाँ पे दिखेगा आपको किस किस डेट में किस किस को क्या परमिशन है. तो एवरीथिंग विल बी विजिबल हियर, बट द कंडीशन इज वी मस्ट हैव ए प्रीमियम लाइसेंस. तो वो चाहिए हमें इसके लिए, बट दिस इज वेरी गुड ऑप्शन. तो सर्च कर लेना आप इसके बारे में. इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट, यू विल बी एबल टू डिस्कस लाइक PIM in Azure Intra ID, then you can discuss about it. See, you will get one of the brief overview कि क्या है, कैसे काम करता है. तो लाइसेंस चाहिए इसके लिए, कौन सा लाइसेंस चाहिए, यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन डिस्कस अबाउट इट. सो ये क्या क्या कर सकते हैं हम, देखो, जस्ट इन टाइम एक्सेस दे सकते हैं, टाइम बाउंड एक्सेस दे सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए, MFA इनेबल यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, एक्सेस रिव्यू जैसे मैंने बताया, ऑडिट की हिस्ट्री, किस किस बंदे ने हमारे पोर्टल पे लॉगिन किया है, सारी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं हम. ऑडिट हिस्ट्री मतलब जिसको मैंने परमिशन दी है उसमें से किस बंदे ने लॉगिन किया है, I would be able to see that. And minimum P2 license or Microsoft Intra ID governance license will be required to use this option. मतलब P1 भी नहीं चलेगा, you must have minimum P2 license. P2 का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास मिनिमम, तब जाके ये फीचर यूज होगा. सो दिस इज कॉस्टली, दिस इज अ कॉस्टली ऑप्शन टू हैव विद. तो वही सब चीजें कि कैसे क्या यूज होता है सब कुछ दिखा रहा है आप लोगों को. फिर इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, इनका ये मतलब है कैसे असाइन करना है, पूरा स्टेप है. ऐड असाइनमेंट पे क्लिक करके एलिजिबल, ये देखो ऐसे करके आता है. आप एलिजिबल करोगे तो टाइम पूछेगा किस टाइम से लेके किस टाइम तक वैलिड होगा आपका परमिशन जो आप दे रहे हो. अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट सेट द टाइमिंग एंड क्लिक ऑन असाइन. उसके बाद फिर एक्टिवेट पे क्लिक करके कितने घंटे के लिए करना है, मतलब कब से लेके कब तक और कितने घंटों के लिए. तो अकॉर्डिंगली देन अप्रूव और डिनाई करना होता है, देन फिर परमिशन विल बी ग्रांटेड. So this is one of the very good security option that we have in the Azure itself.
इसका भी डिस्कशन हमारा कंप्लीट, एंड विद दिस वी आर डन विद द Azure Active Directory. And one more option is there, which is again very general option. Let me show you. If you go to the intra ID, so there are some logs which is going to get generated. Whenever we log in into the portal, whenever we provision something in the Azure, there will be logs. So on the left side, if you see, if I scroll down to the bottom, there will be option of sign in logs under the monitoring. So whenever you click on sign in logs, it will show you the activity of all the sign ins into the portal. Because I am the global admin, तो मैं सबका देख सकता हूँ कि मेरे पोर्टल पे कितने कितने लोगों ने लॉग इन किया. सो फ्रॉम दिस पब्लिक आईपी, दिस इज माय पब्लिक आईपी, ये मेरा पब्लिक आईपी है खुद का. So from this location the login has happened into my Azure portal. ये देखो दिखा रहा है किस टाइम पे लॉगिन हुआ, किस यूजर ने लॉगिन किया, यूबन ने, ये सब दिखा रहा है. देखो अभी हमने यूबन से लॉगिन किया था ना, तो वही सब चीजें बता रहा है. कंडीशनल एक्सेस इज नॉट अप्लाइड, बिना कंडीशनल एक्सेस के किया था, बट MFA इनेबल था. देखो हमारे अकाउंट पे MFA इनेबल था ना, सो इट वाज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. नई दिल्ली, यहाँ से लॉगिन हुआ था फ्रॉम दिस आईपी, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया. बीच में एक बार इंटरप्ट हुआ था, लॉगिन इंटरप्ट भी हुआ था, हमारा लॉगिन हमने हटा दिया था इफ यू रिमेंबर. तो जहाँ जहाँ पे इंटरप्ट हुआ है यू आर एबल टू सी दैट ऑल्सो, एंड देर आर सम एरर कोड. इस एरर कोड को जब आप गूगल पे सर्च करोगे यू विल बी एबल टू सी द डिटेल कि क्या है इसका मीनिंग, क्यों नहीं हुआ था. और सबसे पहले मैंने अपने पोर्टल पे लॉगिन किया था विद माई यूजर. ये मेरा यूजर है, देखो एडमिन वाला, इस यूजर से लॉगिन किया था मैंने. तो एट 9:13 जब आपकी क्लास स्टार्ट करी थी मैंने, उस टाइम पे मैंने पोर्टल पे लॉगिन किया था. तो ये मेरे इस आईडी से हुआ था, एंड इट इज सक्सेसफुल, एंड अगेन द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वाज इनेबल्ड. और इस आईपी से, इस लोकेशन से सब कुछ दिखाएगा आपको. उसके बाद U1 पे प्रैक्टिकल कर रहे थे हम, तो U1 से पोर्टल पे लॉगिन हुआ था. सो whomsoever will sign in into your portal, even the hacker also, अगर किसी हैकर ने भी लॉगिन कर दिया, अगर इन केस किसी हैकर ने भी लॉगिन कर दिया, सो इन दैट केस ऑल्सो द यूजर डिटेल्स एंड द पब्लिक आईपी विल बी विजिबल इन द पोर्टल. यहाँ से ट्रेस करते हैं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट को केस रिपोर्ट करते हो ना, तो उस केस में जो है यहाँ से ट्रेसिंग होती है. जब माइक्रोसॉफ्ट वाले, जब हैकिंग हो जाती है, व्हेन देयर इंजीनियर विल कम इनटू द पिक्चर, तो वो पूरे लॉग्स को ट्रेस करता है. इवन इन द इंटरनल सिक्योरिटी टीम ऑफ द कंपनी, एक SOC की टीम होती है, SOC, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट, ये कंपनी में होती है. तो ये लोग भी यही सब ऑडिटिंग करते हैं बैठे बैठे कि कौन कहाँ से लॉगिन कर रहा है, किस जगह से कर रहा है. अकॉर्डिंगली दे डिफाइन द एक्सेस. सो इंटरेक्टिव लॉगिन का मतलब है पोर्टल पे लॉगिन करना. नॉन इंटरेक्टिव लॉगिन करके होता है विच इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन. अगर किसी बंदे ने किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन किया तो वो नॉन इंटरेक्टिव में दिखाएगा. जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, फ्रॉम माई आईडी, मेरे आईडी से देखो मैंने अभी क्या क्या किया. मैंने अभी PIM ओपन किया, सी ये सब कुछ बैकएंड, ये पोर्टल पे एज्योर पोर्टल लॉगिन हुआ था. उसके बाद ये कुछ एक्सेस पैनल, मतलब मैंने कोई ऑप्शन ओपन किया, क्या क्या ऑप्शन ओपन किया, तो ये राइट साइड में आपको दिख जाएगा. देखो, तो इफ यू गो हियर यू विल बी एबल टू सी, और मेरे आईपी की डिटेल भी आपको दिखेगी. ये देखो, ये PIM ओपन किया मैंने, ये सक्सेसफुली ओपन हो गया था. एंड ऑन द राइट साइड यू विल सी कितनी बार क्या क्या लॉगिन हुआ है. ये रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के ऑप्शन में गया था मैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का ऑप्शन, ये साइन इन दिखाएगा आपको. तो सब कुछ दिखा देगा अभी तक क्या क्या किया है आपने. मतलब ये तो लॉगिन दिखाएगा बस इन द पोर्टल लॉगिन, एंड दिस विल शो यू एवरीथिंग, पूरी एक्टिविटी आपकी कि आपने कहाँ कहाँ पे क्लिक कर दिया, एवरीथिंग इट विल शो यू. तो किसी ने अगर हैकिंग भी कर दी है, सो वी कैन जस्ट गो विद द लॉग्स. बाकी ये दो ऑप्शन है, इट इज द पार्ट ऑफ AJ 305 एंड 500. सो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा अभी, बिकॉज दिस इज वेरी बिग टॉपिक. मैनेज आइडेंटिटी एंड सर्विस प्रिंसिपल्स, ये जैसे हम लोग यूजर बनाते हैं ना कंपनी में, यूजर बनता है, ग्रुप बनता है, और इसके थ्रू आप लॉगिन करते हो, राइट. बहुत सारी सर्विस ऐसी होती है जहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पे यूजर को परमिशन ना देके वी क्रिएट द सर्विस प्रिंसिपल एंड मैनेज आइडेंटिटीज. मतलब मान लो मेरा पूरा डिपार्टमेंट है, लेट सपोज आई एम द पार्ट ऑफ क्लाउड एडमिन टीम. अब क्लाउड एडमिन टीम में मुझे एक ऐसा यूनिवर्सल अकाउंट चाहिए जिसको सब लोग यूज करें. मतलब इन द क्लाउड टीम इफ वी हैव 8 मेंबर्स, तो 8 के 8 मेंबर्स इस अकाउंट को यूज कर सके, कॉमन अकाउंट. और उस पे
मतलब वो किसी यूजर का अकाउंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, जिसका यूज करके मैं किसी एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकूँ बैकएंड में या किसी सर्विस में लॉग इन कर सकूँ. सो दैट इज कॉल्ड सर्विस प्रिंसिपल और मैनेज आइडेंटिटी. जैसे मेरे को कोई पावर शेल की स्क्रिप्ट चलानी है, अब मैं अपने यूजर को, मेरे यूजर को परमिशन नहीं दे रखी है एज ए एडमिन सिक्योरिटी की वजह से. उन्होंने क्या करा, कंपनी ने एक मैनेज आइडेंटिटी क्रिएट करी, मैनेज आइडेंटिटी को सिक्योरिटी परमिशन दे दी कि पावर शेल की स्क्रिप्ट इस अकाउंट से चल जाएगी. तो जिसको पावर शेल की स्क्रिप्ट चलानी है इन 8 के 8 यूजर में से, दे विल यूज दिस क्रेडेंशियल. वो सीधा मैनेज आइडेंटिटी से लॉग इन करके पावर शेल ओपन करके स्क्रिप्ट को रन कर देंगे. एंड दिस विल बी हाईली सिक्योर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे रियल का कोई यूजर है ही नहीं. दिस इज नॉट ए रियल यूजर, दीज आर द सर्विस प्रिंसिपल्स ओनली. सो इस लेवल की सिक्योरिटी भी होती है और ये भी यूज होता है. मैनेज आइडेंटिटी स्क्रिप्ट चलाने के लिए यूज होता है, किसी बैकएंड सर्विस में लॉगिन होने के लिए यूज होता है कंपनीज में. तो जहाँ पे यूजर नहीं है, जहाँ पे आपको पूरे पूरे ग्रुप को एक यूजर बना के देना है कि इसी अकाउंट का यूज करके यू कैन जस्ट यूटिलाइज ऑल द सर्विसेज, देन यू कैन गो विद द मैनेज आइडेंटिटी और सर्विस प्रिंसिपल. सो आई विल नॉट गो विद दिस topic. This is very lengthy topic, very secure also, and this is the part of AZ500 Azure Security and AJ305. Whatever topics are there in AJ500, they all are there in AJ305 as well, because this is related to the architectural training. So in the architectural training, everything will be included. पूरे course जितने भी होते हैं, DevOps, the Azure Security, developers, networking, AJ700. So everything, every topic is there in AJ305 as well. ये सबसे आखिरी certification है. This is the last certification in Azure. फिर AJ400 is also one of the expert level certification, and AJ305 is also one of the expert level certification. This is on the admin side, this is on the DevOps side. So this is also one of the log. Then we have some audit logs. So whatever auditings are being done, like if I will open any service, so all the audits related logs will be generated here. सब audits यहाँ पे generate होती है, and Microsoft is going to keep the log for 1 month for the audits, and for the sign-in also, Microsoft is going to keep the log for 1 month. Now it is for 7 days. Earlier it was for 1 month. Now they have changed the duration to 7 days. So you have to remember this timeline. Sign-in logs will be active for 7 days. After 7 days, the logs will be deleted from here, and audit logs are valid for 1 month. If you want to keep these logs downloaded, you can download. If you want to export it to another option, let's say I want to export it to the Azure storage account, so I can just export to another option. So you will have that option. It is loading. Now you can just add a diagnostic setting and you can forward the logs to another storage. So provisional logs are also there. Provisional logs will be for any kind of deployment. If you will create something in Azure, let's suppose if I will create a VM, so the VM log will be generated here. If I will create any storage account or if I will delete any storage account from the Azure, that logs are going to get generated here. So any provisioning which is happening in the portal, it is going to get generated over here. So these three are the logs that you need to remember. ये 3 logs होते हैं हमारे, audit, sign in and provisioning. पूछता कोई नहीं है इंटरव्यू में. They will not focus on these logs, but you should know about it. कंपनी में काम करते टाइम जरूरत पड़ेगी. रियल इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, बट काम करते टाइम जरूरत पड़ेगी इसकी. Then there is one more option. If you go to the intra ID, so on the left side you can see there is one option of enterprise application. This one. Just give me 1 minute. Yeah. So on the left side there is one option, the enterprise application. If you see, this option is there. So if you click on the enterprise application, there is one option of new application. And after click on the new application, you can create the software as a services in Azure portal. You have multiple SaaS services. These are the SaaS services. If you want to use the Adobe in Azure, if you want to use the Atlassian in Azure or AWS or any one of this,
these are some of the SaaS service. See, Palo Alto. Palo Alto is the firewall. It is the number one firewall in the world. So it is used in a lot of companies. ServiceNow, your ticketing tool. It is also available Salesforce. So we have a lot of tools. Zscaler सुना होगा आप लोगों ने. In some of the company there is Zscaler and Zoom. So these all SaaS applications are available here. You can just click on these and you can enable the licenses on the Azure portal. ये सब SaaS services है. You don't have to install them anywhere. It will get activated on the portal itself, and with the URL we will be able to log in with this. So portal का access हमें सीधा मिल जाएगा Zoom का, and we will be able to use. But before the creation, always remember these services have the cost involved. These are not free of cost. There will be licenses charges that you need to pay. In case if I create the Zoom, so I have to pay the charges. बस create पे click करना है, then it will get activated. So whatever SaaS applications you are able to see, you can use them. See, now the Zoom has been activated. This is the object ID. Now I can assign this Zoom to any other user. मैं इसको किसी user को दे सकता हूँ. I can just simply click on assign. Then user will be able to log in and will be able to use the Zoom. So if I click on assign, it will take me to the user assignment page, and from here I can add the user or group. So if I add the user, so for example, I want to give the permission to U1 and I want to give him the access. These are the license types. See, ये सब license के type होते हैं. Basic, Corp, licensed, on-prem and Pro. So Pro is the high cost license. Here the user will have the access for everything. Plus multiple licenses will be provided. इन सबके अपने अपने differences होते हैं, and these differences will be shared by the Microsoft team only. You can Google it, but main differences has to be taken from the Microsoft. So Pro is the costly license that we have. If you just give the basic license, so in the basic license, one user will be able to use the Zoom at a time. आप एक ही user को assignment दे सकते हो. And in the Pro, it will be around, I think, for 1000 users. So for 1000 users, you will be able to assign the license to the user to use the Zoom. And if you click on select, now click on assign. So U1 has got the permission to use the Zoom. So U1 जब login करेगा, U1 will be able to see the Zoom application. इसको कहाँ पे दिखेगा? So जो उसका वो वाला पोर्टल होता है ना, इनवाइट वाला जो कल मैंने दिखाया था, वहां पे ऐड होता है ये. So there the user will be able to see the Zoom option जब वो login करेगा उस वाले पोर्टल पे. So this one is costly, so I will not suggest to just go through with most of the options. इन सारे options पे जाके मत छेड़खानी करने लग जाना. This is the home page. See, ये home page का URL है. If you just try to open this, so it is not going to open because this URL has to be whitelisted first. यहाँ पे देख रहे हो स्टार लगा हुआ है. So star should not be there. Star basically means you have to whitelist it. So this permission has been given, but you have to get it whitelisted from the firewall. तभी ये URL access होगा direct. और जब user login करेगा from the portal, जो उसका invite वाला portal होता है, from there the user will be able to use the Zoom. तो वहां पे वो इसको यूज कर पाएगा. बाकी SaaS एप्लीकेशन है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. कंपनी डज नॉट यूज इट वेरी मच. बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं करती है कंपनी. लेट मी कनेक्ट माई चार्जर फर्स्ट. लैपटॉप बंद हो जाएगा नहीं तो है फालतू सा ऑप्शन है ये वैसे, बट है. So in case someone, if company does not want to purchase anything, they can go with the enterprise application. So enterprise and application and app registration both are same. सबकी रजिस्ट्री जो आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन में रखते हो वो सब यहाँ पे कुछ टाइम में यहाँ पे दिखेगा. देखो दिख रहा है ना Zoom. So in the app registration also you are able to see your Zoom, and in the enterprise application also you are able to see your Zoom. और ये दो मैंने क्रिएट करी थी. So I use the Terraform on this account, so I have used it for the testing. बाकी इसको हटाना है, so click करके कभी you can just delete the license from here. So you have to remove it, and this will be removed from the app registration option. इसको यहाँ से हटाना पड़ता है. यहाँ से app registration पे click करके you have to remove it.
ऐसे ही है, बेकार सा ऑप्शन, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस, आई डोंट लाइक दिस ऑप्शन। बाकी कस्टम डोमेन मैंने कल बता दिया था आपको, बाकी तो आपके काम के ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। लॉग एनालिटिक्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग, दिस इज वेरी गुड टॉपिक। सो नाउ दिस वन इज डन, वी आर टोटली डन विद दिस। इसको देख लेना, बहुत इजी सा टॉपिक था और थोड़ा बोरिंग टाइप का भी था, बिकॉज बहुत इजीली काम हो जाता है यहाँ पे। देयर इज नो कॉन्सेप्ट यूजर बनाओ यूजर डिलीट करो, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज मॉनिटरिंग। तो अभी स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो खत्म भी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट में ही लेके जाएंगे इसको सैटरडे को। इन द मॉनिटरिंग व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, दिस इज वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द AJ 104, ये आखिरी टॉपिक है हमारा in AJ 104. After this, on Sunday, I will start the DevOps. So what we are going to discuss here, we will be discussing about Azure Monitor. मैं Azure Monitor के बारे में आपको बताऊंगा। Monitor means this one. How to monitor the Azure infrastructure in the company. So I will be discussing about Monitor. Monitor के अंदर जो है, we will be discussing about log analytics workspace. This is the super important demanded topic in the monitoring. Azure में पूरी मॉनिटरिंग इसके कंट्रोल में होती है, लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस। सो ये टॉपिक मतलब आपको आना चाहिए, इट इज मैंडेटरी फॉर यू। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस वन, देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी लॉग्स, वी विल डिस्कस अबाउट सर्विस हेल्थ, वी विल डिस्कस अबाउट द अलर्ट सेटअप, अलर्ट कैसे सेटअप करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड कैसे बनता है कंपनी में मॉनिटरिंग के लिए, दैट वी विल डिस्कस, एंड वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन इनसाइट्स। तो ये टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। दिस टॉपिक हैज गॉट वेरी गुड वेटेज। बाकी ये सब इजी है, मतलब ये बहुत ही इजी सा है। ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज लेंथी टॉपिक एंड गुड टॉपिक ऑल्सो, लॉग से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं लॉगिंग के कंपनी में, लाइक दे यूज द सेंटिनल लॉगिंग्स के लिए, दे यूज द इवेंट हब्स फॉर द लॉगिंग्स, कंपनी यूज द लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस, कंपनी विल हैव सम थर्ड पार्टी टूल्स आल्सो लाइक Prometheus, Grafana, इनको भी यूज करती है वो, बट इन Azure वी हैव सच काइंड ऑफ टूल्स। ये वाले टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, ये दो, इवेंट हब एंड सेंटिनल, दिस इज देयर इन AJ 500 एंड 305, बट मॉनिटरिंग के लिए ये भी यूज होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पे एक लैंग्वेज आएगी आपकी KQL, कुस्टो क्वेरी लैंग्वेज। इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी है, दिस इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय Azure टू क्वेरी विद द लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस। मतलब लॉग एनालिटिक्स से कोई भी लॉग्स अगर हमें निकालने हैं तो हमें इस फॉर्मेट में क्वेरी डालनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड KQL लैंग्वेज, कुस्टो क्वेरी लैंग्वेज। आपने अभी तक ये लैंग्वेज नहीं सुनी होगी, जावा C++ ही सुना होगा, बट इन Azure इट इज KQL। कुस्टो क्वेरी लैंग्वेज भी होता है Azure में। फिर बाइसेप करके लैंग्वेज होती है विच यूजेस द JSON जावा, तो जावा लैंग्वेज भी होती है Azure में। तो बहुत सारी चीजें होती है ऑन द वेरी सीनियर लेवल, मतलब व्हेन यू बिकम द आर्किटेक्ट तो उस केस में ये KQL लैंग्वेज आपको चलानी आनी चाहिए। सो इट्स नॉट समथिंग वेयर यू नीड द प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, नो, इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं दैट यू नीड टू नो। तो काम करते करते आता है, लाइक आई विल ऑल्सो शो यू द KQL लैंग्वेज कैसे काम करती है, कैसे लॉग्स काम करेगा। KQL सिंटैक्स इसमें डॉक्यूमेंट में होगा इनके पास इन Azure। कुछ तो ओवरव्यू, तो कैसे काम करता है देखो, टेबुलर एक्सप्रेशन, लेट स्टेटमेंट, सेट स्टेटमेंट, तो ऐसे करके ये सब इसके फॉर्मेट होते हैं वेयर वी हैव टू एडिट। हाँ, जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसको ये लिख भी लेता है वो खुद से, जिसको नहीं आती दे जस्ट एडिट, कहाँ कहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, दैट पर्सन शुड नो। सो KQL पे आपका बहुत ज्यादा काम नहीं होगा कंपनी में, क्योंकि लॉक्स वगैरह आप मैनेज नहीं करोगे। एक्चुअली लॉक्स मैनेज करने के लिए कंपनी की सिक्योरिटी टीम होती है, बट सेटअप आप करके दोगे, दे विल नॉट सेटअप,
सेटअप आप करके दोगे, लॉक्स पूरा मैनेज कंपनी की सिक्योरिटी टीम करती है। इवन बीइंग एन एसएमई इन द कंपनी आई ऑल्सो डोंट टेक केयर ऑफ द लॉक्स। मेरा काम ये है लॉक सेटअप करके देना, लॉक्स आने चाहिए और लॉक सिक्योरिटी के पास जाने चाहिए। तो पूरा इन्वायरमेंट, पूरा आर्किटेक्चर हम बना के देते हैं उनको। और लॉक्स को एनालाइज करना कि कौन सा लॉक अच्छा है, कौन सा नहीं है, किस पे हैकिंग हो रही है, किस पे नहीं हो रही, दैट इज द जॉब ऑफ सिक्योरिटी टीम। हाँ, कुछ जगह पे हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, लाइक आर्किटेक्ट एंड एसएमई हैज टू बी इन्वॉल्व फॉर द वैलिडेशन। कि जैसे उनको मान लो सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी वाले तो सिक्योरिटी की नॉलेज रखते हैं, दे आर नॉट फुली एफिशिएंट इन द एज्योर। सो एज्योर के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको समझ में नहीं आएंगे, सो दे विल कम टू यू कि भाई ये क्या है, ये समझा दो। सो दैट टाइम यू विल हैव टू गेट इन्वॉल्व, अदरवाइज लॉक्स मैनेजमेंट आप नहीं करते हो कंपनी में, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट होता है। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये पढ़ना है हमें, और ये सारी चीजें तो एक क्लास पूरी लग जाएगी अब इसमें। मतलब सैटरडे को ये खत्म कर दूंगा मैं एनी हाउ, आई विल नॉट एक्सटेंड दिस वन। और संडे को हमारी डेवऑप्स की पहली क्लास होगी। व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेवऑप्स, व्हाट इज एचडीएलसी लाइफ साइकिल, ये सब पढ़ेंगे हम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डेवऑप्स का काम क्या होता है। देन वी विल जंप टू द डेवऑप्स पोर्टल एंड वी विल सी द प्रैक्टिकल। डेवऑप्स पोर्टल पे जाके प्रैक्टिकल देखेंगे हम। सो दिस इज आवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ये सब पढ़ने वाले हैं हम। यस पूजा। सर हेलो। यस। अ, मैंने इससे पहले टेस्टिंग वगैरह की क्लास की है, तो मुझे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट साइकिल वगैरह का नॉलेज है। बट इन केस लाइक क्लाउड एडमिन की जॉब अलग रहेंगे एंड डेवऑप्स में जो रहेंगे उनकी हाँ जॉब वो अलग अलग है, रहेगी। अलग है, अलग है, हाँ। तो अगर मुझे डेवऑप्स में मैं जाती हूँ तो क्या मैंने जो अभी तक क्लाउड का सीखा है वो पूरा मुझे पता होना आना चाहिए, जरूरी है? आना आना चाहिए। इट इज द इन द डेवऑप्स इट इज द प्री रिक्विजिट स्किल सेट। मतलब क्लाउड जिसको नहीं आता उसको डेवऑप्स पे जॉब नहीं लगती, ओके, तो मैंडेटरी। मुझे उसमें मतलब पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए विद जो प्रैक्टिकल्स। जो डेवऑप्स का बंदा होता है ना, एक्चुअली द डेवऑप्स पर्सन इज गिविंग द सपोर्ट इन द एसडीएलसी लाइफ साइकिल। मतलब वो ऑपरेशन का ही बंदा होता है, वो क्लाउड एडमिन ही होता है। बट उसका काम होता है ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना। जैसे आप लोग क्या करते थे मैं बताता हूँ। जैसे आपके डेवलपर ने कोई कोड लिखा, कोड लिख के उसको वो डालता था गिटहब के ऊपर, गिट से ट्रांसफर गिटहब पे करता है, मैनुअली करता है। यस। डेवॉप्स वाला क्या करता है, वहां पे ऑटोमेशन लगाता है, पाइपलाइन क्रिएट कर देता है कि जब भी कोई कोड वो लिख के गिट पे पुश करे तो ऑटोमेटिकली गिटहब के ऊपर चले जाए। और गिटहब पे जाने के बाद आप लोग क्या करते थे, अगले दिन जाके उसको पुल करते थे, पुल करके फिर आगे का कोड लिखते थे, यही होता है। बट यस। उसके बाद फिर आप उसको वो करते थे, क्या बोलते हैं, कंपाइल करते थे कोड को, मतलब उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, ये सब मैनुअली होता था। डेवऑप्स में क्या होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। मतलब डेवलपर ने कोड लिखा, उसको पुश पुश किया गिटहब के ऊपर, जैसे ही उसने पुश किया तो एसएनएस के थ्रू नोटिफिकेशन जनरेट होगा और वो चले जाएगा दूसरी टीम को, इंटीग्रेशन टीम को, कि यार इसने कोड जो है पुश कर दिया। अब ऑटोमेटिकली पाइपलाइन बनी होती है, पाइपलाइन जेनकिंस के थ्रू बनती है, या तो आपके सोनर क्लाउड के थ्रू बनती है, या तो आपके उसके थ्रू आर्गो सीडी के थ्रू बनती है, या तो एज्योर सीआईसीडी के थ्रू बनती है। वो पाइपलाइन क्या करेगी, उस कोड को गिटहब से उठा के ऑटोमेटिकली उसको इंटीग्रेट कर देगी। इंटीग्रेशन होने के बाद वो अपने आप ही एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो रिलीज हो जाएगा सीधा सर्वर के ऊपर प्रोडक्शन में या टेस्टिंग में। ये होता है डेवॉप्स वाले का काम। मतलब उसका काम है ऑटोमेशन सेट करना, डेवलपर को हेल्प करना, सो दैट डेवलपर कैन डू हिज डेली जॉब विदाउट वेस्टिंग द मैनुअल एफर्ट्स। तो ये इसका काम है। तो जो डेवॉप्स वाला बंदा है वो एक्चुअली क्लाउड एडमिन होता है, बट वो थोड़ा सीनियर लेवल पे, मतलब ऑटोमेशन टाइप का बंदा होता है वो, जिसका काम होता है काम को इजी करना। और मोस्टली वो बंदा डेवलपर के साथ काम करता है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो यही करते रहता है, वो क्लाउड पे भी काम करता है। तो ओके। डेवऑप्स इज लाइक एन ऑपरेशनल गाय। उसको कोडिंग वोडिंग पे कुछ काम होता नहीं है, बट वो कोडर्स के साथ बैठ के काम करता है। बट अगर डेवऑप्स वाला बंदा और सीनियर है, मतलब ऐसा डेवऑप्स इंजीनियर है जिसकी सैलरी 30-35 लाख 40 लाख वाला बंदा है, तो उसको कोडिंग भी, मतलब प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए उस केस में। कोड वो लिखता नहीं है, बट प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, प्रोग्रामिंग पढ़ने आनी चाहिए उसको, कि कौन सा सिंटेक्स, कौन सा इंटीजर कहाँ पे क्या काम कर रहा है। क्योंकि उस टाइम पे वो क्वालिटी टेस्ट भी करेगा कोड की। तो एक टूल होते हैं, कई सारे अलग अलग टूल्स होते हैं डेवऑप्स में। उन टूल्स के थ्रू कोड की क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। जिसको जो काम पहले टेस्टर करते थे ना, टेस्ट इंजीनियर, वो काम अब डेवऑप्स वाले सीनियर बंदे कर देते हैं। वो कोड की क्वालिटी को टेस्ट कर लेंगे कि कोड अच्छा है या नहीं है, कहीं फटेगा तो नहीं प्रोडक्शन में। तो ये सारा काम सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर करता है, उसको हम बोलते हैं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो उनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए।
फंडामेंटल ऑफ नॉलेज, दे मस्ट पोजेस दैट वन। जो नॉर्मल डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, हु आर द ऑपरेशनल गाइज, जिनका काम है डेवलपर को सपोर्ट करना, एसडीएलसी को सपोर्ट करना, वो बंदों को प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। बट जो लोग बहुत ही बड़ी सैलरी पे है, लाइक डेवऑप्स लीड है या फिर एक अच्छे सीनियर डेवऑप्स साइट रिलायबिलिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, उनको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल पता होने चाहिए आगे जाने के लिए। तो डेवऑप्स में ऐसा सीन है। तो क्लाउड एडमिन इज ए डिफरेंट रोल। क्लाउड एडमिन का काम पूरा क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करना है। डेवऑप्स वाले का काम होता है एसडीएलसी के लाइफ साइकिल को हैंडल करना, ऑटोमेशन लगाना। हाँ अब सर, जो तो ऑटोमेशन आना जरूरी है, उसके लिए तो कोडिंग ही लगेगा ना सर ऑटोमेशन के लिए। हर जगह लाइक नहीं, कुछ जगह रेडीमेड टूल्स है, रेडीमेड टूल्स के ऊपर आप फिर इम्प्लीमेंटेशन करके ऑटोमेशन कर दोगे। बट जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ गई ना खुद से, वहां पे फिर कोडिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये कोड, ये स्क्रिप्ट बनी कैसे है। तो उस टाइम पे आती है। तो जो बहुत सीनियर वाले डेवॉप्स वाले बंदे होते हैं, दे नो द प्रोग्रामिंग एज वेल। और जो सर नॉर्मल डेवॉप्स है उनके लिए तो नहीं है। जैसे एज्योर का जो डेवॉप्स है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है। बट जो ये आप बात करते हो जेनकिंस की, एनसीबल की, तो एनसीबल तो इट्स लाइक ए डिफरेंट टूल। बट जहाँ पे हम बात करते हैं आर्गो सीडी, ये सब टूल्स की, या फिर आपका ये वाला हो जाता है गिटऑप्स, तो इन सब टूल में लोकी, इन सब जगह पे आपको कोडिंग आनी चाहिए। नहीं भी आती है तो एडिट करके बंदा कर लेता है, लेकिन एक जब खुद से लिखना पड़ेगा सारा मॉड्यूल, सो दैट टाइम यू मस्ट हैव दैट नॉलेज। तो ऐसा होता है फिर। अब ये जो टेराफॉर्म होता है ना, टेराफॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू डेवऑप्स। डेवऑप्स में यूज होता है, बट टेराफॉर्म एक्चुअली इट इज फॉर द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स। टेराफॉर्म के थ्रू क्या होता है, जो काम हमने अभी तक ग्राफिकली किया है, पोर्टल पे जाके किया ना हमने सारा प्रैक्टिकल, टेराफॉर्म के थ्रू क्या होता है, वी राइट आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जिस लैंग्वेज में आईएसी लिखा जाता है इन द टेराफॉर्म, इट इज इन एचसीएल, हैशिकॉर्प सर्टिफिकेट, हैशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इट इज ए प्लेन टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें हमें मॉड्यूल डिफाइन करने पड़ते हैं, और सारा का सारा काम जो आज तक हमने ग्राफिकली किया है, दैट विल हैपन थ्रू द सीएलआई यूजिंग द टेराफॉर्म। तो इससे ऑटोमेशन लगता है कंपनी में, इससे कंपनी का टाइम बचता है, ऑटोमेशन इंप्लीमेंट होता है, ऑडिट वगैरह में भी हेल्प करता है। तो इसलिए टेराफॉर्म जो है ना, वो डेवऑप्स का टूल नहीं है एक्चुअली, इट इज द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स टूल। तो टेराफॉर्म मांगते हैं आज की डेट में, लेकिन इसको डेवऑप्स में भी यूज किया जाता है बाय द डेवऑप्स इंजीनियर्स, सो दैट दे कैन डू द फर्दर ऑटोमेशन। सो टेराफॉर्म एक अलग टूल है, जिसको आप एडब्ल्यूएस के साथ, एज्योर के साथ, या किसी भी क्लाउड के साथ यूज कर सकते हो। तो टेराफॉर्म बताऊंगा मैं आपको। टेराफॉर्म का अपना अलग से ही सर्टिफिकेशन है खुद का, HCA, HashiCorp सर्टिफाइड एसोसिएट इन टेराफॉर्म, HCP, HashiCorp सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन टेराफॉर्म। तो इतने मतलब अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं। टेराफॉर्म इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। आई एम सर्टिफाइड इन टेराफॉर्म। इसका सर्टिफिकेट 2 years के लिए वैलिड होता है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड इन टेराफॉर्म। मतलब मैंने बहुत यूज किया है टेराफॉर्म इन माय एक्सपीरियंसेस। पावरशेल और टेराफॉर्म मैंने बहुत यूज किया है। आई एम वेरी ग्रेट विद पावरशेल एंड टेराफॉर्म, क्योंकि मेरे लेवल पे आने के बाद मतलब ये आना चाहिए आपको, इट इज मैंडेटरी। क्योंकि बहुत सारा काम आईएससी के थ्रू होता है फिर, कि सैलरी और एक लेवल, बोथ द थिंग्स हैज टू बी जस्टिफाइड। तो वो धीरे धीरे, अभी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि एंट्री लेवल रोल्स में हर पोजीशन में कुछ काम का लेवल सेट होता है कि मैं इतना ही काम होगा, इसके अलावा इस टूल्स पे तभी काम होगा जब आप इस लेवल पे जाओगे, तब होता है। बट यस, टेराफॉर्म वी विल लर्न बिकॉज इट विल गिव यू द वेटेज ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज। तो आपको अच्छे कॉल्स देगा अगर आपको टेराफॉर्म आता है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में, यू विल अट्रैक्ट मोर इंटरव्यू कॉल्स। So in the next Saturday, we will complete the last topic of AJ 104, that is monitoring. And from Sunday onwards, we will start AJ 400. This सर is one of the expert training in DevOps. सर हेलो Yes. सर, मेरा ऑटोमेशन मतलब सेलेनियम में, मतलब सेलेनियम का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो जो हम बोल रहे हैं कि ऑटोमेशन हम उसमें करेंगे, तो विच ऑटोमेशन वी विल डू देयर? हम यहाँ कोई ऑटोमेशन नहीं करेंगे एक्चुअली डेवॉप्स में। यहाँ पे बस हम ऑपरेशनल सपोर्ट के जो टास्क होते हैं ना, जैसे पाइपलाइन वगैरह बनाना, यस। यही सब काम करेंगे हम। सेलेनियम हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। सेलेनियम इज अ डिफरेंट टूल। वो सेलेनियम तब पढ़ाया जाता है जब आप डेवॉप्स का कोर्स करते हो। ये सब मैं बताऊंगा आपको संडे को। डेवॉप्स और एज्योर डेवॉप्स दोनों अलग अलग है। एज्योर डेवॉप्स
उन कंपनी में यूज होता है जहाँ पे कोर एजोर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो यस वो एजोर डेवऑप्स यूज करते हैं। जो नॉर्मल डेवऑप्स है इसके अंदर आते हैं एनसिबल, टेराफॉर्म, डॉकर, क्यूबरनेटी। तो क्यूबरनेटी इज ऑल्सो नॉट ए डेवऑप्स टूल। क्यूबरनेटी भी एडमिन का टूल है, ऑर्केस्ट्रेटर है क्यूबरनेटी, जिससे माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस को मैनेज किया जाता है, डॉकर मैनेज किया जाता है। बट उसको डेवऑप्स में ऐड कर देते हैं लोग। डेवऑप्स के अंदर ये टूल आते हैं, आपका एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल आता है डेवऑप्स के अंदर, फिर आपका पपेट, फिर आपका इसके अंदर आता है रैबिट एमक्यू। रैबिट एमक्यू पढ़ना पड़ता है डेवऑप्स के अंदर। फिर आपका शेफ, फिर आर्गो सीडी, आर्गो सीडी इसके अंदर आता है। फिर गिट ऑप्स, एक गिट आता है, एक गिट ऑप्स आता है, वो इसके अंदर है। फिर लॉकी, लॉकी इसमें आता है। फिर आपका सिलीनियम भी इसी के अंदर आता है। तो ये सब डेवऑप्स में आते हैं। प्लस एडिशन टू दैट यू शुड नो द टेराफॉर्म, यू शुड नो द क्लाउड, कोई भी एक क्लाउड आपको पता होना चाहिए। फिर आपको प्रोमेथियस, ग्राफाना जो मॉनिटरिंग का टूल है वो, और इन सब चीजों के लिए ना लाइनेक्स आना चाहिए। मतलब ये सब CLI बेस्ड है, ये जितना ये सेलिनियम ये सब चीजें। एक और टूल लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, जेनकिंस, इससे CI/CD पाइपलाइन बनती है डेवऑप्स में। सो दी मोस्ट ऑफ द टूल्स आर ओपन सोर्स टूल्स, और इनके लिए लाइनेक्स की अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। तो ये तो हो गया डेवऑप्स, जो हर जगह फिट हो जाता है, ओपन सोर्स वाला। जो एजोर डेवऑप्स है ये सिर्फ एजोर के लिए काम करता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाया है अपना। जैसे AWS के पास भी अपना डेवऑप्स है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का डेवऑप्स है, एजोर डेवऑप्स। और जो इन दोनों के बीच में आ जाता है, इट इज नॉर्मल ओपन सोर्स डेवऑप्स, जो आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, चलेगा। तो ऐसा है वहाँ पे। तो व्हेन इट कम्स टू द डिमांड, पहले नंबर की जो डिमांड है डेवऑप्स के मामले में, वो ओपन सोर्स डेवऑप्स की जाता है। मतलब ये जो जेनकिंस, ये जो बहुत सारे टूल है, मतलब देयर विल बी अराउंड 32 टूल्स। 32 में से कुछ 17 to 18 टूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है। बट उनके लिए बेस है आपको वही शेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, ये सब आपको आना चाहिए। लाइनक्स में अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब तो वो टूल ठीक है। दूसरे नंबर पे जो डिमांड है विच इज़ एजोर डेवऑप्स। तो जहाँ पे एजोर चल रहा है वहाँ पे एजोर डेवऑप्स आपको मिलेगा, और उसकी डिमांड सेकंड नंबर पे आती है व्हेन इट कम्स टू द डेवऑप्स। अभी भी ओपन सोर्स वाले के डेवऑप्स की डिमांड पहले नंबर पे है, क्योंकि उसको हर जगह पे फिट कर सकते हैं हम, और वो सस्ता भी है एज कम्पेयर टू द एजोर डेवऑप्स लाइसेंसिंग पॉलिसी। बट बिकॉज यू गाइज आर द पार्ट ऑफ एजोर एडमिनिस्ट्रेशन, सो इसलिए आप एजोर वाला डेवऑप्स पढ़ोगे, दूसरा डेवऑप्स आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। एक डेवऑप्स सीख जाओगे तो दूसरा डेवऑप्स धीरे धीरे आप सीख लेना, अगर आपका डेवऑप्स में इंटरेस्ट है तो। अभी पढ़ के पता चलेगा आपको कि डेवऑप्स आपके लिए इजी है या नहीं है। इफ यू थिंक इट इज नॉट इजी, तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करना, ये सोच के कि सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी चले जाऊं। तो डोंट डू विद दैट, क्योंकि डेवऑप्स इज नॉट लाइक कि पढ़ने में अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, बट उसका जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे, जब रियल में काम करोगे तो डेवलपर के कोड को वहाँ पे इंटीग्रेट करना, ऑटोमेट करना। तो असली के जब कोड देखोगे ना आप लोग, तो अगर आपको लगता है कि यार ये कोड अच्छे नहीं लगते मुझे, सो एडमिन का ट्रैक है आपके पास, यू कैन डिसाइड टू गो विद द एडमिन। और स्टार्टिंग में डेवऑप्स में जॉब लेना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। इफ यू नो द डेवऑप्स इट विल गिव यू एडवांटेज इन द क्लाउड इंटरव्यूज। बट ये मत सोच के चलना कि आप डेवऑप्स के इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं डेफिनेटली। एक्सपीरियंस किस चीज़ का मांग लेंगे, जो लोग क्लाउड पे काम करते हैं उनके लिए तो ईजी है डेवऑप्स पे जाना, क्योंकि उनका बेस बन चुका है। जो डेवऑप्स पे है उनके लिए भी ईजी है, बट जो लोग बिल्कुल ही लाइन स्विच कर रहे हैं बिना क्लाउड पे आए, उनके लिए मुश्किल हो जाता है डेवऑप्स पे जाना। सो किस्मत काम कर गई, इफ द लक इज विद यू, तुक्के से मिल जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, कुछ इंटरव्यू में तुक्का चल गया, रट्टे वट्टे अच्छे मारे थे, अदरवाइज डेवऑप्स पे जल्दी जॉब नहीं मिलती, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, वो आपसे स्क्रीन शेयर करके आजकल YAML फाइल लिखवा देते हैं, कोड लिखवा देंगे आपसे सीधा सीधा। क्योंकि डेवऑप्स ना आजकल पता है क्या करते हैं लोग, 6 मंथ्स का कोर्स कर लेते हैं डेवऑप्स का अलग से, और रट्टे वट्टे मार के इंटरव्यू देने चले जाते हैं, सबको पता चल गया वैसे ही हो रहा है, तो वो फिर स्क्रीन शेयर करवाते हैं आपकी। तो दैट टाइम इफ यू विल नॉट बी एबल टू राइट द YAML, तो उनको पता लग जाएगा यार ये तो बेकार बंदा है, तो नहीं लेंगे वो फिर। तो यस पूजा, तो डेवऑप्स में जॉब लेना आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है, मिल जाती है अगर इफ यू हैव डन द राइट प्रैक्टिस। बट स्टार्टिंग में ये मत सोच के चलना कि हाँ मिल ही जाएगी। बहुत अच्छे से अगर
बेस बना हुआ है, प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल समझ में आते हैं, देन इट इज फाइन, अदरवाइज नहीं। तब लाइनक्स वाइनक्स बहुत कुछ सीखना पड़ता है डेवॉप्स के लिए। यस पूजा। सर अगर सपोज इन केस मतलब रेयर ऑफ द रेयर चांसेस अगर डेवऑप्स में मिल भी जाए, बट रियल टाइम सिनारियो में वही अगर हमें कोडिंग वगैरह का उतना नॉलेज नहीं हो तो भी वो तो फिर निकाल ही देंगे ना, जैसे कि देखो मतलब फिर डिपेंड करता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो काम कर करके सीख भी जाते हैं, क्योंकि कोडिंग आप करोगे नहीं, बस उसको सपोर्ट करोगे। तो सपोर्ट करने के लिए ना बेस पता होना चाहिए कि एसडीएलसी लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। अब वो भी नहीं पता है किसी बंदे को कि यार बैकएंड में होता क्या है, डेवलपर करता क्या है और मैं क्या करूंगा, ऐसे बंदे तो निकाले ही जाएंगे फिर। बट जिस बंदे ने बेस अच्छे से बना रखा है एसडीएल, जैसे इन योर केस यू आर कमिंग फ्रॉम द प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, तो तुम्हारे लिए इजी हो गया वहाँ पे काम करना, कि हाँ सेलेनियम सर, वगैरह पे मतलब काम किया है। थियोरेटिकली मुझे बहुत सी चीजें पता है, लाइक क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस का भी हुआ है, ऑटोमेशन का भी मैंने किया था और मैनुअल का भी मेरा स्ट्रांग है, तो मैनुअल में तो मेरा अच्छे मतलब से जैसे लाइक तुम्हारे ट्रेस। जैसे लोगों के लिए वहाँ पे कॉप अप करना इजी हो गया। दूसरा बंदा जिसने एसडीएलसी लाइफ साइकिल को अच्छे से सीखा हुआ है उसके लिए भी इजी है। बट कुछ बंदे ऐसे हैं ना जो रट्टे मार के चले जाएंगे, फिर उनके लिए डिफिकल्टी है हाँ जस्ट टू सर, सर्वाइव। लेकिन वहाँ पे कोड वगैरह का तो कुछ काम नहीं, नहीं रहेगा ना, लाइक कोड का नहीं, नहीं नहीं, कोड का काम नहीं होता। डेवलपर के साथ काम करोगे आप, उनके पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करके दोगे आप, कोड वोड आप नहीं लिखोगे, वो कभी नहीं लिखोगे आप। वो आप कितने भी सीनियर बन जाओ, यू विल नॉट बी राइटिंग द कोड, दैट इज द डेवलपर्स जॉब। क्योंकि अगर कोडिंग भी हम लिखने लग गए तो फिर डेवलपर क्या करेगा, और हमें आती थोड़ी है। अगर हमें आती ना तो मैं भी आज डेवलपर होता, मैं एडमिन थोड़ी होता। अगर मुझे कोडिंग आती, मुझे भी नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक। स्क्रिप्ट आती है मेरे को, पावरशेल स्क्रिप्टिंग आती है मेरे को बहुत अच्छे से, टेराफॉर्म स्क्रिप्टिंग आती है, बट जो आप मेरे को बोलोगे ना जावा कर दो, सी प्लस प्लस कर दो, ये सब नहीं आता मेरे को। पाइथन में अभी सीख रहा हूँ, ऐसे ही सीख रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हेल्प करेगा मेरे को एआई और एमएल वगैरह पढ़ने के लिए। बट मेरे को आई एम नॉट फ्रॉम द कोडिंग, तो मेरे को अगर कोडिंग आती तो मैं डेवलपर होता, मैं क्यों फिर एडमिन बनता। इंफ्रा में आता ही नहीं मैं, क्योंकि डेवलपर मतलब पहले से डेवलपर चले आ रहा है। इंफ्रा इंफ्रा तो हमें बाद में पता चला है कि हाँ क्लाउड भी होता है, ये भी कुछ होता है, नेटवर्किंग भी होती है। वरना तो सब लोग आईटी वाले बंदे तो डेवलपर ही बनना चाहते हैं ना। आई ऑल्सो वांटेड टू बिकम द डेवलपर, बट नहीं आता। सर मुझे बेसिक लैंग्वेजेस का मतलब नॉलेज भी है, लाइक जावा